Only dead fish goes with the flow. So to stand out, you must do what others don't. A very good evening to everyone. I, Tanya Singh, Information Technology Branch, BTech second year, with my co-host Anand Saran Pandey, Computer Science Engineering Branch, BTech second year. So let's begin with the introduction of our chapter. CodeShip Triple MUT chapter is a community of coding enthusiasts that aims to make learning competitive programming accessible for students and enhance their coding skills. We aim to foster coding culture in the college and help students to delve deeper into the intricacies of competitive programming. We at CodeShift Triple MUT chapter organize myriads of events related to coding contests, workshops, webinars aimed at nurturing the coding abilities. So, of our events, some of our events include Pop 20, Push 21, Rang De Code, Code Anthem, Code Wars, and many more yet to come. Creating an engaged, supportive alumni network is crucial to an institution's success. The alumni will likely have a wealth of experience and skills to share with current students via talks. In certain cases, this could be go even further with alumni offering to practically support students in work placements and help them launch their careers. Our alumni have established themselves as successful individuals in every field, setting up a benchmark for all of us. So let's take a look at some of our prominent alumni. Respected alumnus Nikhil Shukla sir, who is currently placed at Bhel. Respected alumnus Priyanka Rai ma'am, currently placed at Walmart. Next, respected alumnus Amit Tiwari sir, currently placed at Amazon. And respected alumnus Abhishek Yadav sir, currently placed at Amazon. Now, moving forward with the event. It's my great pleasure and honor to welcome all of our speakers for today's session who have worked hard and soared greater height and not just made the CodeShift Triple MUT chapter but the whole college proud. Let's wait till our seniors join. So now introducing to our speakers, I would like to welcome respected senior Ujjwal Gupta sir, who is currently working as a software developer at Humming Wave. He is also an ICPC regionalist and expert at Code Forces. Thank you, sir, for joining us today. Next, we welcome respected senior Ekant Saxena sir, working as software developer intern at Just Pay, and he too is ICPC regionalist. Thank you, sir, for coming at our event. And next, we welcome respected senior Rajesh Kumar Tiwari sir, currently working as software developer at Code Nation. He is also an ICPC regionalist and an expert at Code Forces. Thank you, sir, for accepting our invitation. Next, we would like to welcome respected senior Rupal Singh ma'am, currently working as software developer engineer at ServiceNow. She is also an expert at Code Forces. Very thank you ma'am for joining us today. Next, I would like to welcome respected senior Ayush Tiwari sir, working as software developer at Convergenius, and he is also an expert at Code Forces. Once again, we welcome all the esteemed dignitaries who have joined us today, and thank you everyone for making it possible.
तो अब आगे बढ़ते हैं, जिसके लिए हम वेट कर रहे थे इतनी देर से। अब हमारे क्वेश्चंस के आंसर हमारे रिस्पेक्टेड फाइनल ईयर के सीनियर्स देंगे। सो लेट्स प्रोसीड टू आवर Q&A session. But before that, I would request our speakers to share some words of their experience and suggestion for our freshers to follow during their engineering life. I would like to I would request Ujjwal sir to answer this, to add some point in this topic. I think there is some technical problem. So Hello, Anand. Hello, Tanya. Am I audible? yes, sir. Yes, sir, you're audible. Yes, sir. Yeah, thank you for introducing me. Yeah, I am Ekansh. Maybe Ujjwal is not there. I'll talk to him. Okay. So till then, I'll forward with Yes, you sir. guys. I would like to repeat my question. Yes, sir. I would like to repeat my Yeah, question for please. you, sir. Sir, some of sir, like, what are the experiences and suggestions from your side to the freshers present here that they should follow to make their engineering life more fruitful and successful? Yeah, okay. This is a like very great question. So I would like to answer this question in a like part by part. Okay. So first of all, like what should freshers do in their first year and in second year? Okay. And then after like when third year and final year will start, then how they should like behave or how they should like change their strategy. Actually, complete journey is dependent on your strategy, like how you prepare and how you like organize your stuff to do in the future. अच्छा बैनर का कैंपस Okay. बड़ा है कि अपना So कैंपस अगर बड़ा था किसका क्या बैनर तो बहुत छोटा होगा नहीं बैनर तो So, please mute yourself. Sorry, sir, for the disturbance. Please continue. या नो इश्यूज नो इश्यूज सो अगर मैं फर्स्ट ईयर से बात करता हूँ लाइक आप लोग को फर्स्ट ईयर जो यहाँ पे है कि उसको फर्स्ट ईयर में क्या करना चाहिए एंड ऑल है लाइक कैसे प्रोसीड करना चाहिए सो मोस्ट प्रोबेबली मैं यहाँ इमेजिन करके चल रहा हूँ लाइक एज्यूम करके चल रहा हूँ कि जो भी है CSIT इसी बैकग्राउंड का ही है एंड दे हैव टू लाइक बिल्ड देयर फ्यूचर इन IT सेक्टर ओके सो फर्स्ट ऑफ ऑल आपको कोई ना कोई प्रोग्रामिंग लैंग्वेज सीखनी पड़ेगी इट इज ऑब्वियस आप किसी जो आपको पहले से अगर कुछ आता है लाइक आप पहले से किसी लैंग्वेज पे वर्क करते हुए आए हो लाइक जावा स्क्रिप्ट जावा पाइथन C++ एनी लैंग्वेज ओके तो आप उसके साथ आगे बढ़ सकते हो देयर इज नो इश्यू बट अगर आप एकदम फ्रेश हो एकदम आप नई जर्नी स्टार्ट करना जा रहे हो लाइक आपको कुछ नॉलेज नहीं है कि व्हाट इज प्रोग्रामिंग एंड व्हाट इज लाइक डेटा टाइप्स एनीथिंग सो आप क्या करो मेरा जो ओपिनियन है वो ये है कि आप C++ और C के तरफ जाओ उसकी बिकॉज ऑफ लाइक फ्यू रीजंस क्योंकि उसकी कम्युनिटी बहुत स्ट्रांग है दिस इज ए लाइक ह्यूज रीजन आपको आप ऐसी लैंग्वेज अगर पकड़ लेते हो जिसकी कम्युनिटी स्ट्रांग नहीं है तो इन फ्यूचर अगर आपको कोई डाउट आता है तो वो जल्दी रिजॉल्व नहीं होगा तो वहां पे आपको इशू फंसेगा ठीक है तो आपको ऐसी लैंग्वेज चूज करनी है जिसकी कम्युनिटी स्ट्रांग हो ओके सो इन माय ओपिनियन C और C++ इज लाइक better than other programming language and if you like used to code okay अगर आप कोड करने जा रहे हो लाइक फॉर एग्जांपल इन द CPU बैकग्राउंड तो आप C++ को चूज करो आप प्रॉब्लम सॉल्विंग कर रहे हो DSA सॉल्व कर रहे हो लीड कोड कर रहे हो कुछ भी कर रहे हो तो आप क्या करो C++ की तरफ चले जाओ अगर आपको डेवलपमेंट एरिया में देखना है तो आपको लाइक फ्रंट एंड में तो आपको जावास्क्रिप्ट सीखनी पड़ेगी
बट बैकग्राउंड में आपके बैकएंड के लिए आपके पास ऑप्शंस हैं। आप जावा की तरफ जा सकते हो, पाइथन की तरफ जा सकते हो। ओके, सो प्रोग्रामिंग लैंग्वेज के लिए लाइक आई वांट टू invite few other speakers like Ratnesh, if you are there, if you would like to tell them more about like which programming language should they choose. Thanks, Ekansh. Hello, everyone. Am I audible? Good evening. Good evening, Yes, sir, you're sir. audible. Okay. So yeah, basically, to start your journey in programming, the first thing is to learn the C language. But after that, like you have different domains for development and for DSA and competitive programming. So I suggested for competitive programming, the best language, in my opinion, is C++ because it has a huge community, and like if you are stuck in any question, there are a lot of discussion going on in the comment section, etc. of the question, so you can take help easily. Also, in competitive programming, you can follow various YouTubers who usually code in C++. So C++ give you a benefit in that case, and for development, we have different domains. So accordingly, you can change as your Python, JavaScript, etc. So yeah. सर प्लीज कुछ कम्युनिटी के बारे में बता दीजिए सर। बहुत सारे लोगों को कम्युनिटी के बारे में अभी अच्छे से नॉलेज नहीं है सर। कम्युनिटी क्या है, उसको थोड़ा एलिबरेट कर दीजिए। ओके, सो कम्युनिटी बेसिकली लाइक जैसे आप कॉम्पिटिटिव प्रोग्रामिंग करते हो तो वेरियस साइट्स हैं, एग्जांपल कोड फोर्सेस, कोड शेफ, एंड अगर डीएसए की प्रैक्टिस कर रहे हो तो लीड कोड। तो जब कोई भी क्वेश्चन करते हो आप, तो वहाँ पे एक डिस्कशन सेक्शन होता है लीड कोड में, जहाँ पे ऑलरेडी जिन्होंने पहले से सॉल्व कर रहे होते हैं क्वेश्चन, वो वहाँ पे अपने सोल्यूशन पोस्ट कर चुके होते हैं। तो लाइक जब भी आप फंसते हो या जो भी डाउट आता है, मे बी क्वेश्चन को समझने में, मे बी या फिर क्वेश्चन के सॉल्यूशन को समझने में, तो वो सारे डाउट्स पहले किसी को आए होते हैं, तो उसके सॉल्यूशंस ऑलरेडी एग्जिस्ट करते हैं वहाँ पे, तो आप उसके स्क्रॉल करके आप देख सकते हो वहाँ पे। एंड फॉर कॉम्पिटिटिव प्रोग्रामिंग, कोड फोर्सेस की कम्युनिटी बहुत लार्ज है। व्हेनेवर देयर इज अ कॉन्टेस्ट, उसके लिए एक पोस्ट आता है, एंड उस पोस्ट के कमेंट सेक्शन में कॉन्टेस्ट के बाद बहुत डिस्कशन होते हैं, लाइक फॉर 2 आवर्स 3 आवर्स, जहाँ पे लोग अपने सॉल्यूशंस को डिस्कस करते हैं। ओके सर, थैंक यू सर। एंड अब सर coming to our Q&A session, many questions were asked like sir कि सर majority of attendees first year से हैं, तो उन्होंने लगभग सभी ने अभी तक कोई भी लैंग्वेज स्टार्ट नहीं की है सर। लाइक कुछ भी अभी कोडिंग के बारे में ज्यादा कुछ आइडिया नहीं है। तो सर वो ये चाहते थे जानना कि लाइक आपकी स्ट्रेटेजी क्या थी फर्स्ट ईयर से सर। लाइक आप लोगों ने कैसे प्रिपरेशन की, एंड इसलिए उनको लाइक वो इतनी मोटिवेशनल है, लाइक उससे उन लोगों को क्या सीखने को मिलेगा सर, थोड़ा सा उसके बारे में बता दीजिए सर। रत्नेश सर प्लीज। ओके, सो इन माय केस ऐसा था कि फर्स्ट ईयर में कोई लैंग्वेज नहीं आती थी मुझे, सो आई स्टार्टेड विद सी प्रोग्रामिंग, एंड ज़्यादा टाइम नहीं दिया था, बेसिकली 2-3 वीक्स, 20 days 30 days मैक्स। तो उसको फॉलो कर, लाइक सी प्रोग्रामिंग सीखने के लिए तो लाइक यूट्यूब से आप देख सकते हो, लाइक बुक्स रेफर करना ठीक है, बट मोस्टली यूट्यूब लेक्चर से काम हो जाएगा। तो लाइक फॉर 1 मंथ आप सी सीख लो तो बेटर है वो, एंड डायरेक्टली स्विच टू C++ उसके बाद, क्योंकि पहली लैंग्वेज जो कोई भी फ्रेशर सीखता है वो सी होता है। कॉलेज में भी आपको सी सिखाई जाएगी इन द इनिशियल फर्स्ट सेमेस्टर में, एंड देन उसके बाद से लाइक वो कॉन्सेप्ट्स आते हैं ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड प्रोग्रामिंग के, एंड डिफरेंट कॉन्सेप्ट्स आते हैं। तो उसके बाद से लाइक 1 मंथ के बाद आप C++ में स्विच कर जाओ एंड प्रैक्टिस डीएसए एंड कॉम्पिटिटिव प्रोग्रामिंग इफ यू वांट टू। एंड अगर आपको डेवलपमेंट में जाना है, देन वेब डेवलपमेंट के लिए HTML CSS ही होते हैं। तो इन माय फर्स्ट ईयर ओनली मैंने HTML वगैरह सीख लिया था, HTML CSS ये सब। एंड सेकेंड ईयर के स्टार्टिंग से कंप्लीटली मेरा फोकस था कॉम्पिटिटिव प्रोग्रामिंग।
और उसके अलावा डीएसए तो लाइक साइड बाय साइड होता रहता है वो, लाइक आप डेवलपमेंट कर रहे हो, आप कॉम्पिटिटिव प्रोग्रामिंग कर रहे हो, फर्क नहीं पड़ता है, डीएसए साथ बात साथ चलता रहता है हमेशा कॉन्टिन्यूअसली। और उसकी हमेशा टच में होना चाहिए, लाइक एवरी डे 2 क्वेश्चन 3 क्वेश्चन करते रहो। तो फर्स्ट ईयर में लाइक मेरे सी क्लियर थे, मेरा C++ कंप्लीट था एंड वेब डेवलपमेंट के बेसिक्स आ गए थे। आफ्टर दैट कंप्लीटली 1.5 ईयर कॉम्पिटिटिव प्रोग्रामिंग की थी मैंने। एंड जब सेकेंड ईयर एंड हुआ था तो उसके बाद से आई स्टार्टेड वर्किंग ऑन वेब डेवलपमेंट पार्ट, क्योंकि आई वांट टू गेट सम इंटर्नशिप इन स्टार्टअप्स। तो स्टार्टअप्स के लिए बेसिकली इंटर्नशिप के लिए आपको एक वेब डेवलपमेंट का कुछ नॉलेज होना चाहिए या फिर जिस भी डोमेन में चाहिए। तो उसके लिए मैंने मॉन्स्टैक को सीखा था। एंड या बाकी लैंग्वेजेस इतनी ही थी, लैंग्वेजेस इसके अलावा सीखने की जरूरत भी नहीं है। जो डोमेन एक डेवलपमेंट का है उसकी एक लैंग्वेज आपको आनी चाहिए। एंड सेकेंडली फॉर डीएसए जावा और C++ इन दोनों में चॉइस है, तो मोस्टली लोग C++ पे ही जाते हैं, बिकॉज अगर जो कोई पहले से जावा पढ़ा होगा स्कूल के अंदर देन उसके लिए प्रेफरेबल है कि वो जावा करे। बट क्योंकि कम्युनिटी ज्यादा है, आप इनिशियली सी पढ़ते हो और मोस्टली जो सीनियर्स होते हैं वो भी C++ पे काम करते हैं। तो इस तरीके से C++ मतलब एक प्रेफरेबल लैंग्वेज बन जाती है। एंड देन उसके बाद से आप डीएसए एंड कॉम्पिटिटिव प्रोग्रामिंग C++ में कर सकते हो। Okay, sir. Thank you, sir. And sir, next question, sir. रूपल मैम से पूछना चाहूंगा मैम, लाइक सभी लोग कह रहे हैं कि डीएसए बहुत इंपॉर्टेंट है, बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। तो मैम हमारे फ्रेशर्स को उतना डीएसए के बारे में नॉलेज नहीं है, तो मैम प्लीज कुछ डीएसए के बारे में उनको बता दीजिए। Hello everyone. Thanks for inviting. Okay, DSA if I say like starting में अगर टाइम है तो like फर्स्ट ईयर सेकेंड ईयर तो सीपी करो, या मे बी फर्स्ट ईयर एंड हाफ ऑफ द सेकेंड ईयर सीपी करो, बिकॉज अगर सीपी में स्ट्रांग हो तो डीएसए भी हो जाएगा साइड बाय साइड। लाइक अगर तुम्हें कोई स्पेसिफिक टॉपिक लाइक सीखनी है तो फिर वहां पे तुम जाके स्पेसिफिक टॉपिक लीड कोड से कर लो या जीएफजी से कर लो स्पेसिफिक टॉपिक। अदरवाइज 1.5 ईयर टोटली आई विल से कि कंसंट्रेट करो सीपी को। अगर सीपी अच्छे से आती है तो फिर डीएसए बहुत बिग डील नहीं होगा, फिर तुम्हारा बहुत इजीली चीजें स्मूथली चली जाएंगी, तुम मीडियम लीड कोड क्वार्टर्स के भी एबीसी बहुत फास्टली कर लोगे। सो आई से 1.5 ईयर सीपी को दो, फिर एंड देन डीएसए अगर स्विच करना है तो लीड कोड इज द बेस्ट, बिकॉज उसका डिस्कशन सेक्शन लाइक अ गोल्ड माइन है। बिकॉज अगर तुम कोई अप्रोच किए हो फिर उसके बाद तुम डिस्कस में चले जाते हो, मोस्ट वोट से शॉर्ट करते हो उसको, तो तुम मतलब क्वेश्चन के साथ 5 मिनट में भी देखोगे तो एक से एक तुम्हारे सॉल्यूशंस होते हैं, तो फिर वो सबसे मोस्ट ऑप्टिमाइज सॉल्यूशंस होते हैं। तो तुम एक क्वेश्चन के कई सॉल्यूशंस अगर देखते हो तो तुम्हें भी बहुत सारी आइडिया लग जाता है कि लाइक एक क्वेश्चन को कैसे सॉल्व किया जाता है। सो या यही है। फिर आई थिंक अभी तो 1.5 ईयर अगर जो फ्रेशर्स हैं तो उनको सीपी करो फिर, क्योंकि डीएसए जल्दी हो जाता है। बट हाँ, डीएसए इज मोस्ट इम्पॉर्टेंट बिकॉज आई थिंक ऑनलाइन असेसमेंट का लेवल टफ है तो वहाँ सीपी पूछा जाता है, बट आफ्टर फिर इंटरव्यूज में तुम्हारा प्योरली डीएसए ही पूछा जाता है। मतलब इवन इफ यू से अबाउट गूगल एंड ऑल, सो वो लोग भी मतलब गूगल का टफ इंटरव्यू माना जाता है, बट वो डीएसए ही होता है, मतलब लीड कोड से ही होता है। तुम कहीं भी कोई भी इंटरव्यू दो तो वो लीड कोड ही होता है, लीड कोड से ही होता है, उसके वेरिएशंस होते हैं। अगर तुम्हें लीड कोड का अगर कोई आई विल से जो लीड कोड का जो कॉन्टेस्ट होता है वो देना चाहिए लोगों को। और अगर तुम एबीसी बहुत फास्टली कर ले रहे हो और हार्ड भी अप्रोच कर ले रहे हो थोड़ा बहुत, तो बहुत अच्छा क्रैक कर ले जाओगे। एंड इफ आई से ऑनलाइन असेसमेंट भी मतलब हार्ड आजकल लेवल अप हो गया है, बट स्टिल वो भी लीड कोड से ही होता है कहीं ना कहीं। सो आई विल सजेस्ट कि मतलब लीड कोड की कॉन्टेस्ट दे दो, मतलब अगर सुबह उठ नहीं पाते, मतलब लाइक वर्चुअल लाइव नहीं दे पाते तो वर्चुअल देने की कोशिश करो, जो भी अभी फ्रेशर्स ही हैं, है ना। मत बट अभी तुम लोग लैंग्वेज सीख लो। और अब मतलब अगर मैं स्टार्टिंग से बता दूं तो लैंग्वेज सीख लो एंड देन लाइक सी अगर सीखा है तो फिर जाके हैकर रैंक पे थोड़े सी के क्वेश्चंस के प्रैक्टिस कर लो, ताकि तुम्हें वो लैंग्वेज तो आ जाएगी कम से कम सी। बिकॉज तुम्हारा फर्स्ट सेमेस्टर में जो तुम अगर
पेपर भी करोगे तो फिर वहां पे तुम्हारा एक दो क्वेश्चंस रहे प्रॉब्लम्स रहेंगे, तो वो तुम्हारे सी पे ही उसको सॉल्व करना रहेगा। तो हैकर रैंक पे जाकर के तुम सी लैंग्वेज के क्वेश्चंस कर लो, 3-4 स्टार हो जाओ, देन C++ शिफ्ट हो जाओ, फिर उस पे भी कुछ क्वेश्चंस कर लो, CPP पे भी, लाइक ताकि तुम्हें वो लैंग्वेज तो अच्छे से आ जाए। हैकर रैंक पे CPP का एक सेक्शन है जो उस क्वेश्चंस पे कर सकते हो, ठीक है। तो फिर उसके बाद ही मतलब इतना करने के बाद ही कहीं स्विच करना फिर तो बेटर रहेगा। या दैट्स ऑल, थैंक यू। Thank you, ma'am. Thank you, ma'am. So, our next question is to Ekant, sir. Sir, generally freshers don't have any idea about competitive programming, its importance and its benefits. So, sir, can you please guide them about CP and its relevance? या श्योर। तो लाइक सीपी क्या चीज है और डीएसए क्या चीज है, आधा टाइम तो फर्स्ट ईयर में यही डाउट रहता है हमारे मन में कि लाइक व्हाट इज डीएसए एंड व्हाट इज सीपी, बोथ आर सेम और बोथ आर डिफरेंट, है ना। सो एक्चुअली बोला जाए तो दोनों सेम भी नहीं है और दोनों एज मच डिफरेंट भी नहीं है, क्योंकि दोनों में करना क्या होता है, आपको एक प्रॉब्लम स्टेटमेंट दिया जाता है, आपको उसे कोड करना पड़ता है, ठीक है। बट दोनों में चेंज क्या है कि आप कॉम्पिटेटिव प्रोग्रामिंग को अगर देखोगे तो जनरली इसमें मैथमेटिक्स का इन्वॉल्वमेंट ज्यादा रहता है और एक स्टैंडर्ड क्वेश्चन जो होते हैं वो थोड़े से आपको डीएसए पोर्शन में ज्यादा मिलेंगे, ठीक है। कॉम्पिटेटिव प्रोग्रामिंग में भी डेटा स्ट्रक्चर्स एंड एल्गोरिदम्स का यूज होता है, ठीक। तो ऐसा नहीं है कि लाइक डीएसए का मतलब है कि प्रॉब्लम सॉल्विंग, जनरली लाइक कोई भी आपको एक स्टैंडर्ड टाइप का प्रॉब्लम है, आपको वो सॉल्व करना है, उसको हम जनरली बोलते हैं कि भाई ये प्रॉब्लम सॉल्विंग हो गया, ओके। कॉम्पिटेटिव प्रोग्रामिंग क्या हो गया कि आपको मैथमेटिक्स से रिलेटेड कुछ बहुत सारी प्रॉब्लम्स मिलती है, उसमें भी डेटा स्ट्रक्चर एंड एल्गोरिदम का यूज होता है, बट वो सीपी है। सीपी के लिए लाइक कई सारे प्लेटफॉर्म्स हैं जहाँ पे आप प्रैक्टिस करते हो, जिसमें मेनली जो हम लोग करते थे, हमारे सीनियर्स भी जिस पे करते थे, तो वो मेनली कोडशेफ, कोडफोर्सेस, ये दो प्लेटफॉर्म जो है वो मेन थे जिस पे करते थे। और अपार्ट फ्रॉम दिस आप एड कोडर भी है, उस पे भी कर सकते हो। बट अगर मैं बताऊं कि आप फर्स्ट ईयर में अभी आपको क्या करना चाहिए, ठीक है, तो आप बाहर नहीं जा रहा था, मेरे कॉल में याद आ रहा था। I think someone's mic is on. Anand, can you please mute Sorry, them? sir. Yes, sir. We're done. Yeah. Please continue. Okay. So, okay. So फर्स्ट ईयर में अगर आप देखो कि लाइक आपको कहाँ से स्टार्ट करना चाहिए, क्योंकि ज्यादा बताने का भी अभी कोई फायदा नहीं है, आप सब मिक्स कर लोगे अपने दिमाग में। तो आप क्या करो, एज रत्नेश सर सेड कि आप सी प्रोग्रामिंग उठाओ, ठीक है, उसको पढ़ना स्टार्ट करो और वो खत्म करो इस ईयर में ही। फिर C++ पकड़ो, उसमें फॉर लूप्स एंड पैटर्न्स प्रिंटिंग और जो भी कुछ होता है उससे रिलेटेड जो बेसिक्स होते हैं उसको कर लो। एंड अलोंग विद दिस आप नंबर थ्योरी कर लो, ठीक है। नंबर थ्योरी बहुत इंपॉर्टेंट है अगर आप सीपी में लाइक अच्छा करना चाहते हो, क्योंकि सीपी में नंबर थ्योरी मैथमेटिक्स बहुत ज्यादा यूज होती है। तो आप फर्स्ट ईयर में नंबर थ्योरी कर सकते हो, क्योंकि नंबर थ्योरी में ऐसा कुछ नहीं है कि लाइक जो आप अभी नहीं समझ पाओगे आगे जाके ही समझ पाओगे, ऐसा कुछ नहीं है, वो सिंपल मैथ ही होती है। तो आप फर्स्ट ईयर में ये मान के चलो कि अगर आपको सीपी में अच्छा करना है तो आप सी प्रोग्रामिंग, C++ बेसिक्स कंप्लीट कर लो, ठीक है, और नंबर थ्योरी कंप्लीट कर लो। और बेसिक आप ग्रीडी प्रॉब्लम्स को अप्रोच करना स्टार्ट करो। ग्रीडी प्रॉब्लम्स क्या होती है, ग्रीडी का मतलब क्या होता है, कोई बताएगा ग्रीडी का मतलब क्या होता है? एनीवन फ्रॉम फर्स्ट ईयर? क्या होगा बता दे। तो ग्रीडी का मतलब क्या है, लालच, है ना। तो ग्रीडी प्रॉब्लम्स का क्या मतलब होता है कि कुछ ऐसी प्रॉब्लम्स जिसमें हमें ऐसे सोचना है, हमें लालची होकर सोचना है, लेकिन हमको आंसर किसी भी तरीके से बस बनाना है, ठीक है, और जिसमें एफर्ट हमारा कम लगे, या फिर जो प्रॉब्लम कह रही है, जो चीज बोल रहा है कि लाइक आपको इतने स्टेप्स में इस प्रॉब्लम को सॉल्व करना है, इतने ही स्टेप आपको यूज करने हैं। तो ग्रीडी अप्रोच का क्या मतलब हो जाता है कि हम कम से कम में सॉल्व करें, कम से कम स्टेप्स लगाएं, अगर वो बोल रही है कि मिनिमम स्टेप में आपको सॉल्व करना है। तो आप फर्स्ट ईयर में क्या करो, सी कर लो, C++ कर लो, नंबर थ्योरी और बेसिक्स ऑफ ग्रीडी, लाइक छोटे छोटे जो ग्रीडी प्रॉब्लम्स आपके 800 रेटिंग, अभी ये रेटिंग में नहीं बताऊंगा आपको, फिर कंफ्यूज हो जाओगे, मतलब इजी जो ग्रीडी प्रॉब्लम्स होती है वो आप कर सकते हो, ओके। सो कॉम्पिटेटिव प्रोग्रामिंग बेसिकली यही है कि मैथ से रिलेटेड आपके कॉन्टेस्ट होते हैं, कई सारे प्लेटफॉर्म है, लाइक जो यहाँ पे आपको दिख रहा होगा स्क्रीन पे, उसमें लिखा है ACM
ठीक है, आईसीपीसी, किक स्टार्ट, हैकर कप। तो फेसबुक अपना ऑर्गेनाइज कराता है कॉन्टेस्ट, सीपी कॉन्टेस्ट, जो हैकर कप नाम से होता है। ठीक है, ऐसे गूगल का किक स्टार्ट नाम से होता है, और किक स्टार्ट में अच्छा परफॉर्म करने से गूगल का इंटरव्यू कॉल भी आती है। ठीक, एसी, अब ये आईसीपीसी क्या है? आईसीपीसी बेसिकली एक तरीके से इंटरनेशनल कंपटीशन है इसी चीज का, कॉम्पिटेटिव प्रोग्रामिंग का। इसमें कुछ स्टेप्स होते हैं, लाइक फर्स्ट आपको क्या होता है, कॉलेज लेवल पे कॉम्पीट करना पड़ता है। जब इस ये आपका कॉन्टेस्ट होता है, लाइक आईसीपीसी राउंड 1 जो होता है, वहां पे आपके कॉलेज की टीम्स अलग अलग, सब लोग आपके जो आपके ईयर के होंगे और जो जूनियर्स होंगे आपके, वो सब लोग क्या करेंगे, टीम बना के पार्टिसिपेट करते हैं। ओके, उसमें फिर आपके कॉलेज में जो लाइक टॉप 1 और टॉप 2 टीम्स होती है लगभग लगभग वो, और इसमें लाइक आईसीपीसी जो है वो रीजन्स पे डिवाइडेड है, लाइक अमृतापुरी रीजन्स है, और भी बहुत सारे कानपुर रीजन्स है। ठीक है, अलग अलग रीजन्स है, तो सब लोग अपने अपने रीजन में पार्टिसिपेट करते हैं। फिर आप जो आपके कॉलेज में टॉप 1 और 2 टीम्स होती है वो सिलेक्ट होती है फर्दर रीजन्स के लिए जाने के लिए, रीजनल राउंड के लिए। इसका सेकंड राउंड जो होता है वो रीजनल राउंड होता है। फिर वहां पे compete करते हैं, फिर आगे आते हैं, ऐसे कर करके फिर लास्ट जो राउंड होता है वो आपका वर्ल्ड वर्ल्ड लेवल का हो जाता है, कि लाइक अलग अलग टीम्स आती हैं अलग अलग जगह से, वो कॉम्पीट करती है। तो आईसीपीसी एक तरीके से आपका क्या हो गया, इंटरनेशनल कॉम्पिटेटिव प्रोग्रामिंग का एक कॉन्टेस्ट टाइप का है। सो और आपके लिए लाइक रेगुलर कॉन्टेस्ट होते हैं, कोडशेप पे, कोड फोर्सेस पे। आप वहाँ पे लाइक कॉन्टेस्ट देते हो, वहाँ पे सबका अपना अपना है। किसी में स्टार्स, जैसे कोडशेप में क्या होता है, स्टार्स होते हैं, कि आप जैसे परफॉर्म करोगे वैसे आपको स्टार्स मिलेंगे, लाइक 2 स्टार, 3 स्टार, 4 स्टार, 5 स्टार। ऐसे ही आपका कोड फोर्सेस पे है, वहाँ पे आपका रेटिंग का एक्चुअली एक नाम दिया गया है कि स्पेशलिस्ट, एक्सपर्ट, कैंडिडेट, मास्टर, इस तरीके से। ठीक है, तो जैसा आप परफॉर्म करते हो वैसी आपकी रेटिंग बढ़ती है, उस हिसाब से आपकी वहाँ पे डेजिग्नेशन रहती है, कि लाइक आप 5 स्टार कोडर हो या आप एक्सपर्ट हो। और इसका बहुत इफेक्ट भी पड़ता है एक्चुअली, जब आप फर्दर देखोगे, जब आप अपने रिज्यूमे में उस चीज को लिखते हो कि आप इस प्लेटफॉर्म पे आपने कोडिंग करी है और आप यहाँ पे 5 स्टार्स हो, ठीक है, आपके 5 स्टार है, तो जब आप अपने रिज्यूमे को रिक्रूटर को भेजते हो, तो वो देखता है कि उसे पता, ये देख के पता चलता है कि इस प्लेटफॉर्म पे इस बंदे ने कोडिंग करी है, मतलब इसकी कोडिंग स्किल्स अच्छी है, तो आपके शॉर्टलिस्ट होने के चांसेस ज्यादा रहते हैं। तो दिस इज लाइक ऑल अबाउट द कॉम्पिटेटिव प्रोग्रामिंग। Yeah, Anand, Thank you you, can sir, for your answer. Thank you, move ahead. sir. Sir, Yes. So my next question is from Ratnesh sir. Sir, actually हमारे recent exam curriculum में कुछ recently कुछ changes हुए हैं, जिसके वजह से हमें एक semester में 2 minors and we have to give 2 minors and 1 major exam. So we have got our schedules very hectic. तो हम इसे कैसे manage करें CP के साथ में is also one of the biggest doubt. ओके, तो लाइक 2 माइनर्स हैं, एक मेजर्स है ना। तो जैसे सबको पता होता है कि कॉलेज एग्जाम्स के लिए लाइक बहुत देर से प्रिपेयर करने की जरूरत नहीं होती है। कॉलेज एग्जाम्स के लिए लाइक 1 वीक और 2 वीक पहले से प्रिपेयर करना एनफ होता है। ठीक है, सो उसके अलावा जो पहले का टाइम होता है उसमें लाइक कोडिंग करो नॉर्मली 2 घंटा 3 घंटा दिन का, तो डेट वुड बी एनफ। आप रोज के अगर 2 घंटे भी बैठते हो क्वेश्चन करने के लिए, लाइक दिन के 2 क्वेश्चन या 3 क्वेश्चन भी करते हो, तो वो एनफ होते हैं। जो सबसे बेसिक पार्ट होता है कॉम्पिटेटिव प्रोग्रामिंग में, कि आप इनिशियली 1 महीने 2 महीने करोगे और आपको रिजल्ट्स नहीं दिखेंगे, आपको लगेगा कि लाइक कोई रिजल्ट नहीं मिल रहा है, मैं इम्प्रूव नहीं कर रहा हूँ, तो आपको स्टक होना पड़ेगा उसके ऊपर, कि आपको 5 महीने 6 महीने लगातार करना पड़ेगा काम। तो फिर आपको रेटिंग्स में या फिर अपने रैंकिंग्स में इम्प्रूवमेंट दिखेगा। तो लाइक ऐसा नहीं होता है कि आपको दिन के 6 6 घंटे 7 7 घंटे करने पड़ेंगे। सबसे इंपॉर्टेंट बात होती है कंसिस्टेंसी। आप जितने कंसिस्टेंट हो उतना बेटर हो। जरूरी नहीं है कि लाइक एग्जाम्स के दिन तो चलो ठीक है आप स्किप कर सकते हो। जनरली जो कॉन्टेस्ट होते हैं कॉम्पिटिटिव प्रोग्रामिंग में, वो शेड्यूल होते हैं रात को 8 बजे। तो रात को 8 बजे लाइक क्लासेस तो आपकी पहले ही खत्म हो जाती है, तो कॉन्टेस्ट के टाइम पे भी आप हमेशा ही फ्री रहोगे। कहने का मतलब है कि लाइक कॉन्टेस्ट हमेशा रेगुलर दो। फोर्सेस पे आपकी कॉन्टेस्ट की फ्रीक्वेंसी होती है, वो होती है आपके हफ्ते में 2 या 3 बार। एंड ऐसे ही कोड शेफ पे आपके लॉन्ग चैलेंजेस होते हैं, उसके बाद से शॉर्ट चैलेंजेस भी होते हैं कोड शेफ पे, तो महीने में 4 5 कॉन्टेस्ट वहां पे हो जाते हैं। तो अगर आप कॉन्टेस्ट की प्रैक्टिस करते हो, सो एक एक महीने में आप करीब 15 से 20 कॉन्टेस्ट दे सकते हो।
तो वो भी एनफ होंगे। 15 कॉन्टेस्ट में हर कॉन्टेस्ट में 2 या 3 क्वेश्चन आप सॉल्व कर लोगे, बाकी 1-2 आप सॉल्विंग कर लोगे, मतलब कि कॉन्टेस्ट के बाद सॉल्व करोगे। तो वो भी 4 क्वेश्चन हर कॉन्टेस्ट में अगर सॉल्व करते हो आप तो भी काफी क्वेश्चन हो जाएंगे। तो ऐसा नहीं होता है कि लाइक कॉलेज के एग्जाम्स हैं तो उस टाइम पे कल वो पढ़ाई कर रहे हो आप, ठीक है, वो 1 हफ्ता 2 हफ्ता आप कर लोगे, बट बाकी टाइम में आप रेगुलरली 1 घंटे 2 घंटे क्वेश्चंस करो। एंड जो कॉन्टेस्ट देते हो उसके बाद सोचो कि मैंने क्या गलती थी कॉन्टेस्ट में, एंड उस पर वर्क करो। बाकी मैनेज करना बहुत ज्यादा हार्ड नहीं होता है, क्योंकि मोस्टली लाइक अभी तो कॉलेजेस खुल गए हैं। लाइक हमारे टाइम पे ऐसा था कि ऑनलाइन हो रहा था काफी चीजें, सो हम लोग के लिए काफी इजी होता था ये मैनेज करना, बिकॉज ऐसे फिजिकली क्लास नहीं जाना पड़ता था और हम लोग घर पे थे लॉकडाउन की वजह से। तो उससे काफी बेनिफिट हुआ कि लाइक हम लोग के पास काफी टाइम होता था। एंड जो कॉन्टेस्ट थे हम लोग रेगुलर अटेंड करते थे। लाइक अगर अभी आप देखोगे तो सब अधिकतर लोगों के जो फाइनल ईयर में है उनके 80 से 90 कॉन्टेस्ट हो चुके हैं ऑलरेडी। तो ओवर स्पैन ऑफ 2 इयर्स 80 to 90 कॉन्टेस्ट काफी अच्छे हैं। तो यही कहेंगे कि लाइक दिन के 1 घंटे 2 घंटे आप क्वेश्चन करो और सारे कॉन्टेस्ट अटेम्प्ट करो जितने हैं। लाइक कोड शेफ पे, कोड फोर्सेस पे, एड कोडर बताया एक आंसर ने अभी, तो जितने भी कॉन्टेस्ट हैं उसको सारे को अटेम्प्ट करो आप। थैंक यू। यस सर, थैंक यू सर। एंड अभी कोई अटेंडीज में से कोई क्वेश्चन पूछना चाहता है तो अपना हैंड रेज कर सकता है। आयुष शर्मा, आप अपना माइक ओपन कर लीजिए और क्वेश्चन पूछ सकते हैं आप। Sir, am I audible? हाँ, आप ऑडिबल है। Good evening, respected seniors. My name is Ayush Sharma. I'm from Computer Science and Engineering Department, BTech first year. Sir, मेरा क्वेश्चन ये है कि जितने भी सीनियर्स हैं, what exactly got you here? मतलब क्या क्या आपका रोड मैप था, और क्या आपको प्रायर नॉलेज थी मतलब कोडिंग से रिलेटेड? और जो जैसे कि हम फ्रेशर्स हैं तो हम सबके माइंड में एक जनरल सा क्वेश्चन रहता है कि हम कितना कितना करते रहें तो कितना ज़्यादा हमारी जर्नी स्मूथ रहेगी, मतलब हमें ज़्यादा कुछ मतलब बहुत ज़्यादा एक्स्ट्रा मतलब आवर्स ना देने पड़े, या मतलब कितना कितना करते रहेंगे तो बहुत इजीली हो जाएगा सब कुछ। एंड सर एक डाउट ओके और ओके। था, ये तो एक सेकंड क्वेश्चन और था सर, सॉरी टू इंटरप्ट, कि जैसे कि अभी 2 टर्म्स जैसे कि हम बहुत सुनते हैं, सीपी और डेवलपमेंट। तो सर व्हाट आर द, आई वांट टू नो कि व्हाट आर द एग्जैक्टली जॉब अपॉर्चुनिटीज या फिर पोस्ट जो सीपी में होती हैं या डेवलपमेंट में होती हैं, तो इन दोनों में मतलब क्या क्या अपॉर्चुनिटीज या पोस्ट्स होती हैं हमारे पास? दैट्स ऑल सर, थैंक यू। आई वुड लाइक टू रिक्वेस्ट उज्जवल सर कि सर उनका इसका आंसर दें। I would like to request Ujjwal sir to answer his question, please. Hello, am I audible? Hello, am I audible? Yes, sir, you are. Yes, Yes, sir. sir, you're audible. Okay, first of all, thank you, Coach and Triple M UT chapter, for inviting me here. ये फर्स्ट ईयर से तो मैं अपना ये शेयर करता हूँ। मेरा एज अ प्रायर कोई नॉलेज नहीं था प्रोग्रामिंग बैकग्राउंड में। जब मैं यहाँ आया सी लेवल थी वो लैंग्वेज मेनली सर CSIT में, तो आपका आवाज थोड़ा सिंगल लैग हो रहा है। सॉरी सर, बट थोड़ा सा आपका आवाज लैग हो रहा है। ऑडिबल नाउ इट्स फाइन। नो सर, अभी भी लैग कर रहा है। एम आई ऑडिबल? यस सर। ओके, तो मैं ये कह रहा था कि फर्स्ट ईयर में जब हम लोग आते हैं
तो बहुत से लोगों का बेस होता है, बैकग्राउंड होता है 12th में प्रोग्रामिंग का, लाइक बहुत से लोगों के स्कूल में जावा या C++ प्रोग्रामिंग लैंग्वेज पढ़ाई जाती है, लेकिन बहुत से मेजोरिटी ऑफ स्टूडेंट्स के साथ ये होता है कि वो उनका कोई बैकग्राउंड नहीं होता। तो फॉर देम द फर्स्ट सेमेस्टर में हम लोग के C लैंग्वेज होती है, और CSE और IT ब्रांचेस में C लैंग्वेजेस पढ़ाई जाती हैं फर्स्ट सेमेस्टर में। तो हम लोग वहाँ से C लैंग्वेज पढ़ सकते हैं, और मैंने भी वहीं से C लैंग्वेज स्टार्ट की थी। और फिर सेकेंड सेमेस्टर में ऊप्स और C++ का कॉन्सेप्ट आता है, तो हम लोग वहाँ से ऊप्स और C++ पढ़ सकते हैं। एंड पैरेलल, इसके साथ ही पैरेलली हम लोग DSA भी स्टार्ट कर सकते हैं। लाइक इतना एडवांस DSA तो नहीं, पर बेसिक पढ़ सकते हैं, लाइक एरे, स्ट्रिंग, स्टैक एंड क्यू। इतना फर्स्ट ईयर में मैंने किया था। उसके बाद सेकेंड ईयर की स्टार्टिंग में मैंने कॉन्टेस्ट देना स्टार्ट किया था। मैं ये रेकमेंड करूंगा कि तुम लोग फर्स्ट ईयर से ही कॉन्टेस्ट देना स्टार्ट करो, पैरेलली कॉन्टेस्ट भी देते रहो। जैसे जैसे लैंग्वेज पढ़ रहे हो, लैंग्वेज सीख रहे हो, कोई कॉन्सेप्ट नया सीख रहे हो, तो साथ ही साथ कॉन्टेस्ट भी देते रहो, और कॉन्टेस्ट से कुछ नई चीज सीखो। जैसे कि सपोज करो कॉन्टेस्ट में कोई क्वेश्चन आया, वो सेट या मैप यूज कर रहा है, और तुम लोग को सेट और मैप नहीं पता क्योंकि तुम लोग ने सिर्फ C या C++ पढ़ी है। तो जाओ देखो सेट और मैप कैसे इम्प्लीमेंट होता है, और उसके कॉन्सेप्ट पढ़ो, कैसे पुश होता है, कैसे पॉप होता है। उसके बाद इस थ्रू हम लोग को चीजें भी आती रहेंगी, और हम लोग DSA भी साथ साथ प्रिपेयर करते रहेंगे। फिर कॉन्टेस्ट दो, फिर सेकेंड ईयर में आ जाओ, तो फिर थोड़ा बहुत डेव भी कर लेना, मीन्स कॉम्पिटेटिव प्रोग्रामिंग साथ साथ डेव कर लेना, और DSA भी फिर स्टार्ट कर दो, मीन्स लीड कोड या GFG, 2 प्लेटफॉर्म होते हैं जनरली DSA के। तो वहां पे क्वेश्चंस प्रैक्टिस करना स्टार्ट कर दो, और फिर पैरेलली लीड कोड के भी कॉन्टेस्ट देते रहा करो। लीड कोड के कॉन्टेस्ट एवरी संडे मॉर्निंग होते हैं 8 AM पे। और जो लीड कोड के कॉन्टेस्ट हैं उनमें उसका जो पैटर्न होता है 4 क्वेश्चंस पर कॉन्टेस्ट, वो काफी सिमिलर होता है जो भी हायरिंग प्लेटफॉर्म्स होते हैं। लाइक हम माइक्रोसॉफ्ट का अगर हायरिंग कॉन्टेस्ट देखें या अमेजोन का देखें, तो वो काफी सिमिलर होता है उसके कॉन्टेस्ट। तो इसके थ्रू तुम लोग के प्लेसमेंट ओरिएंटेड भी प्रिपरेशन हो जाएंगी। तो यही था मेरा रोड मैप फर्स्ट ईयर से सेकेंड ईयर तक। थैंक यू सर। एंड सर, हमारा कॉलेज सर टायर 3 कॉलेजेस है सर, तो हमें कभी कभी बहुत प्रॉब्लम्स आती हैं इंटर्नशिप एंड ऑफ कैंपस इंटर्नशिप में। तो सर रूपल मैम से मैं पूछना चाहूंगा कि क्या क्या अपॉर्चुनिटीज हैं हमारे लिए इंटर्नशिप में, एंड सर कौन सी स्पेशल अपॉर्चुनिटीज हैं गर्ल्स के लिए। ये फ्रंट पेज पे जो पेज है वो सारी गर्ल्स है, गर्ल्स का ही है आई थिंक। इंगेज बॉयज का है, स्टेप इंटर्न बट मे बी गर्ल्स या बॉयज, आई डोंट नो, बट ऑलमोस्ट बाकी सब चीजें गर्ल्स की ही है। मैम प्लीज आप थोड़ा सा एलिब्रेट कर दीजिए कि कौन से सबके लिए हैं एंड कौन से गर्ल्स के लिए स्पेशली हैं। देखो अभी आई वुड सजेस्ट जो भी यहाँ पे लोग एक्टिवली सुन रहे हैं वो थोड़ा कुछ लिखते भी रहें। लाइक अगर तुमने एक वर्ड सुन लिया तो उसको लिखते भी रहो, ताकि बाद में उस चीज को एक्सप्लोर कर सको, बाद में उस चीज को एक्सप्लोर कर लो, या जितनी अपॉर्चुनिटीज है कुछ ना कुछ नोट्स बनाते रहो जो तुम्हारे सीनियर्स बोल रहे हैं या सुन लिया, क्योंकि वो फिर भूल जाओगे। फिर तो फिर एटलीस्ट तुम अगर कहीं लिखे रहोगे तो एटलीस्ट खुद जाके बाद में एक्सप्लोर कर लोगे चीजें, राइट। तो फिर माइक्रोसॉफ्ट इंग्लिश तो आई थिंक गर्ल्स बॉयज दोनों का है, एंड स्टेप इंटर्न कंफर्म नहीं हूँ मैं, बाकी और चीज बाकी थर्ड फोर्थ फिफ्थ से गर्ल्स का ही है। सो आई विल सजेस्ट कि एंड डेसिस एक DSO का डेसिस एसेंट एडुकेयर का प्रोग्राम भी होता है, वो भी गर्ल्स का है। तो मोस्ट जो गर्ल्स हैं आई विल से कि जो गर्ल्स का सेकेंड ईयर से ही कुछ ना कुछ उनको मिल जाएगा। मेंटरशिप प्रोग्राम आता है, चाहे DSO हो गया, चाहे ये इंगेज का हो गया। तो सेकेंड ईयर में भी बहुत सारे प्रोग्राम्स आते हैं मेंटरशिप गर्ल्स के लिए आते हैं। तो वो गर्ल्स अगर अपने लीड कोड से DSA स्ट्रॉन्ग कर ले तो मतलब बहुत क्रैक कर सकती हैं, क्योंकि अगर उन लोग का ऑनलाइन असेसमेंट भी ऐसा होता है कि लीड कोड से ही होता है, मतलब जैसे अगर ABC तुम्हारा अच्छे से हो रहा है और इंटरव्यू भी अगर जाओगे तो फिर वो लीड कोड से ही क्वेश्चंस आएंगे। तो CP तो करो, कॉन्टेस्ट तो, और प्लस लीड कोड भी साइड बाय साइड आई थिंक DSA कर लेना, क्योंकि गर्ल्स का सेकेंड ईयर में अपॉर्चुनिटीज आती हैं, और अगर तुम लोग पहले से अवेयर रहोगे तो वो बेनिफिट करेगा तुम लोगों को उधर।
सो यही है। और ऑफ कैंपस की जो बात है, इशू तो है क्योंकि अभी अपॉर्चुनिटीज नहीं मिलती है, बट आई विल सजेस्ट कि हार्ड वर्क करोगे, एट द एंड मिल ही जाएगा। जस्ट फेथ रखो। और मतलब जितना लाइक क्या होता है कि अब जैसे कॉलेज में जाने के बाद बहुत बच्चे मतलब थोड़े मजे करते हैं एंड ये सब भी होता है ना, बट हम लोग ऑफ कैंपस हैं तो थोड़ा ज्यादा इंटेंसिवली पढ़ना पड़ता है। थोड़ा कुछ इंटेंसिवली बॉयज को तो सीपी अगर तुम्हारा करना पड़ेगा, ताकि तुम्हें शो करे कि हाँ तुम्हारे अंदर कुछ एक्स्ट्रा है चीजें, ताकि तुम्हें इजीली रेफरल मिल जाए। और ये चीजें तुम्हें कॉन्टेस्ट गूगल किक स्टार्ट दो, एंड बहुत सारे कॉन्टेस्ट होते हैं लाइक फेसबुक हैकर कप हुआ, तो सारे कॉन्टेस्ट तो जितने भी कॉन्टेस्ट आते हैं, ठीक है, उसमें जो तुम्हारी रैंकिंग होगी वो तुम अपने रिज्यूमे पे लिखोगे तो वो साइन करेगा, तुम्हें रेफरल भी इजीली मिल जाएगा, एंड देन या रिक्रूटर भी अप्रोच कर लेंगे, है ना। सो आई विल कि ऑफ कैंपस में तुम्हें मेहनत ज्यादा करना पड़ेगा, लाइक इजिली मतलब क्योंकि इंटरव्यू की चांस मिलना इज मोस्ट इम्पॉर्टेंट, क्योंकि अगर इंटरव्यू मिल गया तो फिर सबके लिए कॉमन प्रोसेस ही होता है, ठीक है। तो वो चांस लेने के लिए तुम्हें एक्स्ट्रा एफर्ट करना पड़ेगा जो ऑफ कैंपस जाएंगे। एंड गर्ल्स के लिए तो भी आई थिंक थोड़ा इजी होता है चीजें, बट बॉयज के लिए और भी ज्यादा टफ होता है। गर्ल्स के लिए अलग से एक प्रोग्राम हो जाता है, तो ये नहीं होता है कि जाके इंटरव्यू प्रोसेस इजी होता है गर्ल्स या बॉयज का, नहीं, बट ये है कि गर्ल्स को अपॉर्चुनिटी मिल जाती है। लाइक गर्ल्स का अलग से एक प्रोग्राम, हायरिंग प्रोग्राम कर देते हैं ऑफ कैंपस, राइट। तो उसमें क्या होता है कि गर्ल्स को अपॉर्चुनिटी मिल जाती है, वो अपने आप को प्रेजेंट करने के लिए वो मतलब उनको एक अपॉर्चुनिटी मिल जाती है कि हाँ वो शो कर सके कि या आई हैव दैट कैपेबिलिटी। बट बॉयज जो होते हैं उनको मतलब बहुत कम होता है ऑफ कैंपस। रेफरल लेने के लिए तुम्हें सीपी आई थिंक मस्ट करना ही करना, बिकॉज क्योंकि अगर रिज्यूमे साइन करवाना है या इजिली तुम्हें रिक्रूटर नोटिस करे या चीजें हो, तो वो चीज सीपी करो, कॉन्टेस्ट में पार्टिसिपेट करो, अच्छे रैंक्स लाओ, फिर उसको शो करो। लिंक्डइन प्रोफाइल मतलब मेंटेन रखो, राइट। लिंक्डइन प्रोफाइल को भी अच्छा रखो, रिक्रूटर भी कांटेक्ट कर लेते हैं, राइट। तो यही है। एंड हार्ड वर्क करो, और ये ऑफ कैंपस एट लास्ट एट द एंड मतलब आई थिंक फेथ रखो, एट द एंड अच्छा ही होता है। आई लॉन्ग टर्म में सब चीज मतलब चाहे ऑफ कैंपस हो चाहे ऑन कैंपस, वो अच्छा हो जाएगा, बस तुम्हारा हार्ड वर्क मैटर करता है। या यही, और कुछ पूछना Okay, ma'am. तो। Thank you, ma'am. If anyone amongst attendees wants to ask question, then they can raise their hand. Tanya Sharma Chetan, can you unmute. can mic and ask your question. Good morning, respected seniors. My name is Tanya Sharma, Mechanical Engineering Branch, BTech first year. My question is that, sir, what is the difference between online compiler and offline compiler? जैसे ऑनलाइन कंपाइलर होता है जीडीबी में करते हैं हम लोग, और ऑफलाइन होता है बीएस कोड एंड कोड ब्लॉक्स में, उसमें क्या डिफरेंस होता है? I would like to request Ratnesh sir to answer a question. हेलो। हाँ या एक बार आप रिपीट कर दोगे जो नाम बताया था आपने, भी बोला था। सर जीडीबी कंपाइलर। देखो बेसिकली जो ऑनलाइन कंपाइलर्स होते हैं ऑफलाइन कंपाइलर्स होते हैं, उनमें डिफरेंस बस ये होता है कि जो आपका कोड होता है, जो आपने कोड लिखा होगा किसी क्वेश्चन के लिए, वो कहाँ पे एग्जीक्यूट हो रहा है। जो सॉफ्टवेयर्स होते हैं जैसे वीएस कोड, या फिर आप सबलाइम टेक्स्ट को भी यूज कर सकते हो, या फिर और भी जितने भी लोकल कंपाइलर्स हैं, C++, सी के लिए विजुअल एक स्पेशल कंपाइलर होता है अलग से, एंड फॉर C++ एक डेव सी करके कंपाइलर आता है। तो ये सारे जो कंपाइलर्स हैं ये आपके कोड को जो है आपके मशीन पे ही एग्जीक्यूट करते हैं। बट जो ऑनलाइन कंपाइलर्स हैं वो क्या करेंगे कि आपको ऑनलाइन उनके एडिटर पे कोड लिखना होगा, एंड देन वो अपने प्लेटफॉर्म पे कोड रन करवा के आपको आउटपुट दिखा देंगे, शो कर देंगे। सो फॉर मोस्ट ऑफ द प्लेटफॉर्म पे ऑनलाइन कंपाइलर्स अवेलेबल होते हैं, जैसे कि लीड कोड, कोड शेफ, कोड फोर्सेस, हर जगह होते हैं। बट डिफरेंस ये होता है कि जब आप ऑनलाइन कंपाइलर पे कंपाइल कर रहे हो तो आपके नेटवर्क से आपके कोड एग्जीक्यूशन की स्पीड पे काफी डिपेंडेंट हो जाता है,
कि कई बार होगा कि आपके नेटवर्क इशू की वजह से आपका कोड तो जल्दी चल गया लेकिन आपका आउटपुट नहीं मिल रहा है। तो उस केस में प्रेफर होता है कि ऑफलाइन कंपाइलर को यूज करो जब आप कोई भी कॉन्टेस्ट दे रहे हो या फिर कुछ कर रहे हो। एंड सेकेंडली जो आपके इंटरव्यूज होते हैं उसमें कई बार होता है कि आपको ऑनलाइन कंपाइलर्स वो शेयर कर देंगे कि एक पर्टिकुलर कंपाइलर है और उसी पे वर्क करना है, वो कंपनी स्पेसिफिक होगा, उन्होंने शेयर कर दिया। और कई में होगा कि आपको ऑफलाइन बोल दिया जाएगा कि आप अपनी मशीन पे कोड रन कर दो एंड स्क्रीन शेयर कर दो। तो वो डिपेंड करेगा, तो दोनों पे काम करना आना चाहिए कि कैसे होता है। एंड फॉर कॉम्पिटिटिव प्रोग्रामिंग प्रेफर करो कि ऑफलाइन कंपाइलर यूज करो इंस्टेड ऑफ ऑनलाइन, क्योंकि स्पीड का काफी फर्क पड़ता है कॉम्पिटिटिव प्रोग्रामिंग में। तो ऑफलाइन कंपाइलर रखना बेटर होगा एंड ज्यादा डिफरेंस नहीं होता है, कोड सेम ही एग्जीक्यूट होता है दोनों पे, बस डिपेंड करता है स्पीड पे एंड आपके नेटवर्क है कि नहीं। That's it. Thank you, sir. Okay, thank you, sir. Next, Kashish, you can ask your question. Hello, Kashish. hello, sir. Am I audible? Yes, you are audible. Ask your question. Good evening, respected seniors. Myself, Kashish Agarwal. I am from Electronics and Communication Engineering ब्रांच बीटेक फर्स्ट ईयर। सर माय डाउट इज कि मतलब मैंने जब सर्च किया, थोड़ा एक्सप्लोर किया लैंग्वेजेस के बारे में, बिकॉज अभी मैंने कोई भी लैंग्वेजेस वगैरह नहीं सीख रखी है, तो जावा और सी प्लस प्लस दोनों ही मतलब प्लेसमेंट वगैरह के लिए सही रहते हैं। तो जब मैंने दोनों में डिसाइड करने के लिए थोड़ा इसके लिए एक्सप्लोर किया था, तो उसमें ये था कि जावा जो है एक तो प्लेटफॉर्म इंडिपेंडेंट है, हम बहुत सारे प्लेटफॉर्म्स पे उसे रन कर सकते हैं, और साथ में मतलब उसे इजी भी होता है सी प्लस प्लस से। तो आई हैव स्टार्टेड डूइंग दैट। तो क्या सही है या फिर मतलब इसमें कुछ ड्रॉबैक्स वगैरह हैं, या मुझे वापस से सी प्लस प्लस सीखनी पड़ेगी साथ में अगर मुझे सीपी और ये सब करना है तो? Okay. I would like to request Ikan sir to answer this question. Like which language she should select? या श्योर। सो लाइक जावा और सी प्लस प्लस में अगर आप कंपेयर कर रहे हो ना, तो जावा के देखो बहुत सारे बेनिफिट्स हैं जो कि सी प्लस प्लस प्रोवाइड नहीं कर सकता आपको इजीली। स्टार्टिंग विद द कि आप जावा में अपना करियर भी बिल्ड कर सकते हो इंडिपेंडेंटली, बिकॉज जावा का जो फ्रेमवर्क है स्प्रिंग बूट, वो वाइडली यूज होता है काफी मल्टीनेशनल कंपनीज में, ठीक है। और ये पार्ट आता है आपका डेवलपमेंट के साइड में, मतलब बैकएंड पार्ट के लिए। अगर आप बैकएंड करने जा रहे हो, डेवलपमेंट करने जा रहे हो, तब जावा बहुत अच्छी है, ठीक है। आप जावा को एकदम प्रायोरिटाइज कर सकते हो ओवर दी अदर लैंग्वेजेस। बट अगर आप, मैं कहूँ कि आप सीपी करने जा रहे हो, आप कॉम्पिटेटिव प्रोग्रामिंग करने जा रहे हो, या फिर प्रॉब्लम सॉल्विंग की बात कर रहे हो, ठीक है, तब वहां पे आप जावा पे कर सकते हो, देर इज नो इश्यू। बट अगेन द प्रॉब्लम इज कि कम्युनिटी की प्रॉब्लम आ जाती है। आपको इतनी वाइड और इतनी जो अच्छी कम्युनिटी जो सी प्लस प्लस की है, वो आपको वहां पे नहीं मिल पाएगी। तो मोस्ट ऑफ द टाइम्स क्या होता है कि आप जब कोई कोड कर रहे हो, कहीं पे आपका एरर आ गया, फंस गए हो, तो आप वो अगर किसी से पूछते हो तो वो बोलेगा कि यार मेरे को सी प्लस प्लस आता है और आपका इम्प्लीमेंटेशन मेरे को समझ में नहीं आ रहा है। लॉजिक भले आप समझा दोगे, बट कई बार होता है कि इम्प्लीमेंटेशन में प्रॉब्लम होती है, तो वो नहीं हेल्प कर पाएगा। या आप ऑनलाइन भी देखोगे तो आपको इतने रिसोर्सेज नहीं मिलेंगे, इतने ज्यादा आर्टिकल्स नहीं मिलेंगे जो आप उस मतलब गो थ्रू करके आप अपना क्वेश्चन को रिजॉल्व कर पाओ, ठीक है, अपनी प्रॉब्लम रिजॉल्व कर पाओ। तो फिर वही होता है कि कम्युनिटी की प्रॉब्लम हो जाती है। और एक और प्रॉब्लम होती है कि जावा का जो है वो थोड़ा सा टाइम जो है वो ज्यादा होता है। मतलब जो आपका कोड जो टाइम लेगा एग्जीक्यूट होने में, वो थोड़ा सा एज कम्पेयर टू सी प्लस प्लस ज्यादा टाइम लेता है। तो कुछ कंपाइलर्स के साथ में ये इशू होता है, बाकी तो लाइक टाइम तो उसी हिसाब से डिफाइंड होता है हर प्रॉब्लम के लिए, लैंग्वेज स्पेसिफिक। बट सम ऑफ द टाइम्स ऐसा आपको देखने को मिलता है कि कुछ कुछ प्रॉब्लम्स क्या होती है वो सी प्लस प्लस में सॉल्व हो जा रही होती है, और सेम लॉजिक सेम अप्रोच अगर आप जावा में लिख रहे होते हो तो वो आपको टीएलई दे देता है, ठीक है। तो फिर वहां पे आपको इशू लगता है कि यार मैं कोड तो सही लिख रहा हूँ लेकिन ये सी प्लस प्लस में चल रहा है और जावा में नहीं चल रहा है। तो ये सारी जो है आपके इश्यूज आ जाते हैं। तो मोस्ट प्रोबेबल अगर ज्यादा आप प्रेफर करना चाहते हो, अगर आप इस पार्ट में ज्यादा एक्सप्लोर करना चाहते हो लाइक कॉम्पिटेटिव प्रोग्रामिंग और प्रॉब्लम सॉल्विंग, तो आई वुड सजेस्ट कि आप सी प्लस प्लस पे स्विच कर सकते हो
अगर आप ज्यादा आगे नहीं गए हो जावा में, अगर आप लाइक सब कुछ जावा में पढ़ चुके हो, लाइक डीएस से आप अच्छे से पढ़ चुके हो कि लाइक हाउ डेटा स्ट्रक्चर्स आप इम्प्लीमेंट करते हो जावा में, आपको ग्राफ्स पता है इम्प्लीमेंट करना, सब कुछ पता है, तब कोई दिक्कत नहीं है, आप जावा के साथ ही कंटिन्यू करो। अगर आप अभी बिगिनर ही हो, अभी आपने ज्यादा जर्नी नहीं करी है जावा के साथ में, तो आई वुड सजेस्ट कि आप स्विच कर लो, सी प्लस प्लस में आ जाओ, आपको ज्यादा उस बेनिफिट्स मिलेंगे। और रही बात कि आप ये बोल रहे थे कि जावा ज्यादा आपको इजी, मतलब जावा ज्यादा इजी है सी प्लस प्लस के कंपेरिजन में, तो एक टाइम के बाद आपको लगेगा कि यार कि जावा में बहुत ज्यादा लंबा कोड लिखना पड़ता है। आपको जावा में जो आप कोड जितना जावा में लिखोगे और सी प्लस प्लस में लिखोगे, तो सी प्लस प्लस वाले कोड की लेंथ काफी कम होती है एज कम्पेयर टू जावा। जावा में आपको बहुत सारी क्लासेस डिफाइन करनी पड़ती हैं, सारा ऊप्स में डील करना पड़ता है, बट सी प्लस प्लस में इतना ज्यादा हेक्टिक नहीं होता वो चीजें। एनी फर्दर डाउट इफ यू हैव? थैंक यू Thank you, सर। sir. जूनियर्स में से किसी और को कोई डाउट है तो दे कैन रेज देयर हैंड। Bhava, you can open your mic and ask your question. Good evening, respected seniors. My name is Bhavya Srivastav. I am from Computer Science and Engineering branch, BTech first year. So my question is that, like, we have started to learn the C language. आपकी वॉइस लैग कर रही है, रिपीट करिए क्वेश्चन। So we are doing it on Visual Code, and we are practicing the questions on HackerRank. Should we do more than one platform right now to practice the question rather than HackerRank? Or we should increase our stars only on HackerRank and then switch to other platform? Your voice was lagging, so please repeat the question once again. So like we are practicing our problems on HackerRank, only we are using HackerRank. So should we go for another platforms also like CodeChef and many more? Okay. I would like to request Ratnesh sir to answer her question. Hello. Yeah. So, am I audible? Yes sir, you're audible. Yes, sir. So basically जो आपकी स्टार्टिंग होती है उसमें आप हैकर रैंक पे प्रैक्टिस कर रहे हो करंटली, तो वो लैंग्वेज सीखने के लिए काफी अच्छा प्लेटफॉर्म है। तो आप अभी लाइक वहाँ पे कुछ क्वेश्चंस करो 50-60 अप्रोक्स, वहाँ पे क्वेश्चन करो। स्टार इज नॉट इम्पोर्टेंट, स्टार इम्पोर्टेंट नहीं है आपका, आप कितना क्वेश्चन कर रहे हो, कितनी अंडरस्टैंडिंग आ रही है, वो इम्पोर्टेंट है। एंड बाकी प्लेटफॉर्म्स पे कुछ चेंज नहीं होगा बहुत ज्यादा। काम क्या होगा कि बस वहाँ पे थोड़ा सा डिफिकल्टी बढ़ जाएगी। हैकर रैंक जो होता है बिगनर फ्रेंडली होता है बहुत ज्यादा, तो वहाँ के जो क्वेश्चंस होंगे आपको लैंग्वेज सिखाने पे ज्यादा फोकस रखते हैं इंस्टेड कि आपको लाइक कॉम्पिटिटिव प्रोग्रामिंग या अदर स्टफ। तो इनिशियली आप हैकर रैंक पे काम करो, काफी क्वेश्चंस करो, एंड देन आप देख सकते हो बाकी प्लेटफॉर्म्स पे लाइक डीएसए के लिए आप लीड कोड देखो, सबसे बेस्ट वो होता है। हर जगह पे क्वेश्चन सेम होते हैं, लाइक जो क्वेश्चन आपको लीड कोड पे मिलेगा आपको सेम टू सेम गीक्स फॉर गीक्स पे भी मिल जाएगा। लाइक लेकिन जो प्लेटफॉर्म होता है वो आपकी पसंद के ऊपर है कि लाइक आपको किसका यूआई बेटर लग रहा है। लीड कोड में ये फायदा होता है कि वहाँ का डिस्कस सेक्शन बहुत अच्छा होता है। वहाँ पे आपको हर हर डाउट का सोल्यूशन मिल जाएगा तुरंत के तुरंत। तो लाइक आपको स्टक नहीं होना पड़ेगा कहीं पे भी, आपको कोई भी डाउट आ रहा है डिस्कस में आप सर्च कर लो आपको दिख जाएगा। तो उस केस के लिए लीड कोड बेस्ट है।
तो फॉर इनिशियली आप हैकर रैंक पे काम करो और स्टार से बहुत ज्यादा वो मत रखो कि स्टार बढ़ाना है। आप क्वेश्चंस करो, जब आपको अंडरस्टैंडिंग मिल जाए लैंग्वेज की तो आप स्विच कर सकते हो। Thank you, sir. Thank you, sir. Thank you, sir. Now next, if anyone else wants to ask some questions, they can raise their hand. So, Excuse me, sir. Aniket Kumar, you can unmute yourself and ask your question. Sir, I would like to ask questions that if I'm interested in drone technology, so which language should I prefer? Which will be better? Which coding language? Okay. I would like to request Ujjwal sir to answer his question. Which technology? Can you please repeat it, Aniket? Yes, sir. Can you please repeat your question? Yes, sir. I would like to ask that if I am interested in drone technology, so Drone which technology. language should I learn? Yeah, drone. Yeah, so which language which language should I learn for coding? Means there is also process of coding in drone. So which language should I prefer? देखो निकेत, ये जो ड्रोन टेक्नोलॉजी है ये तुम्हारी इलेक्ट्रॉनिक्स के फील्ड की टेक्नोलॉजी हो गई। ये एम्बेडेड लैंग्वेजेस तुमको सीखनी पड़ेंगी, लाइक C# एंड कभी कभी C लैंग्वेज भी सीख के हो जाता है, कहीं कहीं काम चल जाता है C लैंग्वेज भी सीख के। बट इन टेक्नोलॉजीज के लिए तुमको कोई एम्बेडेड लैंग्वेज सीखनी पड़ेगी, C#। जैसे कि मुझे इसका इतना आइडिया नहीं है। एकांश, कैन यू कंटिन्यू द क्वेश्चन? या श्योर उज्जवल। तो लाइक आपको ड्रोन की देखो कोडिंग करने के लिए आप पाइथन भी यूज कर सकते हो, लाइक जो भी हाई लेवल लैंग्वेजेस होती हैं आप यूज कर सकते हो, ठीक है। बाकी जैसे उज्जवल ने बोला कि एम्बेडेड वगैरह के लिए आप जा सकते हो, उधर होता है पाइथन के थ्रू भी होती है, जावा के थ्रू भी इसकी कोडिंग होती है। तो ऐसा नहीं है, C# भी है, उसके थ्रू भी आप इसकी कोडिंग कर सकते हो, ठीक। तो कोई भी आप हाई लेवल लैंग्वेज पकड़ोगे उसके थ्रू आप कोड कर सकते हो इसका, ठीक है। बट अगर आपको एकदम एग्जैक्टली आंसर चाहिए और आपको लाइक ये भी पूछना है कि लाइक फ्लो कैसा होगा, कि आप इनिशियली क्या सीखो देन क्या सीखो और आगे क्या फ्यूचर स्कोप है ड्रोन टेक्नोलॉजी से रिलेटेड, तो आप इसके लिए मैं आपको बता दूंगा। अपार्ट फ्रॉम दिस सेशन यू कैन कांटेक्ट मी, आई विल सजेस्ट यू सम लाइक गुड सीनियर्स, यू कैन कांटेक्ट टू हिम। लाइक वो आपको अच्छे से बता देंगे जिन्होंने जो इस पे एक्चुअली काम कर रहे हैं ड्रोन टेक्नोलॉजी पे, क्योंकि वी आर नॉट वर्किंग ऑन दिस टेक्नोलॉजी राइट नाउ। Okay, sir. Thank you. Thank you, sir. Sir, I have one more question. May I? Ask. Sir, how to maintain good CGPA in college in triple MUT? I would like to request Ayush sir to answer this question, please. Ayush sir, please answer his question. Am I audible? Yes, sir. So, good CGPA with good placement. तो मैं ये कहूँगा कि कॉलेज में CGPA मेंटेन करना कोई बड़ी बात नहीं है। मतलब हम एग्जाम के कुछ समय पहले ही पढ़ सकते हैं, एक हफ्ते पहले, एक रात पहले या एक हफ्ते पहले ही पढ़ सकते हैं। सो गुड CGPA वहाँ से भी बन जाएगा। और जहाँ तक बात है कोडिंग करने से, तो रेगुलर कोडिंग करना पड़ेगा, अदरवाइज प्लेसमेंट का तो खराबी है। यहाँ पे कॉलेज में तो होने वाला नहीं है, कॉलेज में मतलब कॉलेज के थ्रू तो होने वाला नहीं है, अच्छा प्लेसमेंट कोई कंपनी नहीं हो रहा है। Yes. Okay, thank you, sir. Sir, may I ask that how did you maintain your CGPA during your bachelor's engineering?
Okay. So you आपको आपका आंसर नहीं मिला? सर ने बताया है और इस क्वेश्चन के लिए Yes, sir. I would Actually, like पूछिए. actually, sir, if we are attending regular classes and there is 75% criteria as well, and I'm interested in startups. So if I am doing side hustle, then it is a little bit hard. Okay, so I would like to request Ekant sir to answer his question for how to maintain CGPA. या श्योर अनु. तो लाइक आप अगर सीजीपीए मेंटेन करने की बात कर रहे हो ना, आप कह रहे हो कि लाइक आपको 75% अटेंडेंस भी मेंटेन करनी है, साइड हसल भी करनी है, ड्रोन टेक्नोलॉजी पे भी काम करना है ना, और आपको स्टार्टअप्स को भी देखना है. तो आप देखो एक काम करो, देखो आपको अटेंडेंस अगर आपको पूरी हर क्लासेस करनी है तो आप 5 PM तक तब भी आप फ्री हो जाओगे, ठीक है. और उसके बाद आपके पास टाइम है, ऐसा नहीं है कि आप आए और सो गए और खाना खाया सो गए बस और तो कुछ नहीं करे. ऐसे तो नहीं हो पाएगा. आपको देखो अपना टाइम खुद से मेंटेन करना पड़ेगा. अगर आप 5 बजे आ रहे हो, आप 1-2 घंटे रेस्ट लेके खाना खा के अगर 9 बजे भी पढ़ने बैठ जा रहे हो ना, तब भी आपके पास 3-4 आवर्स है. 1 बजे से पहले तो आई डोंट थिंक सो कि लाइक कॉलेज में आके कोई सो रहा है. सो भी रहा है तो फिर उसी का नुकसान है, बट 12-1 बजे तक तो आप जाग सकते हो आराम से. तब भी आपके पास 4 घंटे हैं. तो 4 घंटे में आप जितना साइड हसल करना चाहते हो, जो भी नई चीजें पढ़ना चाहते हो, अगर आप कंसिस्टेंट होके डेली 4 नहीं, आप 3 आवर्स या 2 आवर्स भी डेली दोगे ना, तब भी आप अच्छा परफॉर्म करोगे. एट दी एंड आप अगर स्टार्टअप में जा रहे हो, ड्रोन में जा रहे हो, जो भी कर रहे हो, आप अच्छा कर ले जाओगे. तो इट्स कंप्लीटली ऑन यू कि आप अपना टाइम कैसे करके मैनेज कर रहे हो. ओके. Yes, sir. Thank you, sir. Thank you, sir. Thank you, sir. Someone else wants to ask question, you can raise their hand. Chaitanya, you can open your mic and ask your question. Good evening, sir. Sir, am I audible? हाँ, क्वेश्चन पूछिए. सर ये क्वेश्चन पूछना था कि इतने सारे लैंग्वेजेस हैं तो कौन सा लैंग्वेज सीख कर मैं क्या कर सकता हूँ, किस फील्ड में जा सकता हूँ, मुझे ये जानना था. I would like to request Ratnesh sir to answer his question, please. Can you repeat the question, please? सर मेरा क्वेश्चन ये था कि सर इतने सारे लैंग्वेजेस हैं डिफरेंट तो कौन सा लैंग्वेज सीख कर मैं किस फील्ड में जा सकता हूँ. ओके, सो इसके लाइक काफी आंसर्स पहले भी हम लोगों ने किए हैं अभी इसी सेशन में कि जो स्टार्टिंग होती है वो सी लैंग्वेज होती है. किसी भी बीटेक में अगर आप एडमिशन लेते हो तो पहले सेमेस्टर में सी पढ़ाई जाती है आपको. एंड देन उसके बाद से आपके पास चॉइसेस होती हैं कि आप बेसिकली स्टार्टिंग में पाइथन, जावा और C++, ये 3 लैंग्वेज होती हैं. तो बिगनर्स के लिए ये तीनों तीनों ही आप कर सकते हो, बट मोस्टली लोग C++ में जाते हैं बिकॉज ऑफ कम्युनिटी. तो अगर आप DSA या फिर क्या कहते हैं कॉम्पिटिटिव प्रोग्रामिंग करना चाहते हो, देन C++ को प्रिफर करो. एंड अगर आप थोड़ा सा डेवलपमेंट लाइक डेटा साइंटिस्ट या फिर उस फील्ड में जाना चाहते हो तो पाइथन को प्रेफर करो, बिकॉज पाइथन में काफी इनबिल्ट लाइब्रेरीज होती हैं जिनको यूज करके आप डेटा एनालिसिस वगैरह कर सकते हो. एंड अगर आपको लाइक डेवलपमेंट करनी है, जैसे कि एकांश सर ने बताया था कि स्प्रिंग बूट या फिर ऐसे अलग अलग चीजें हैं, तो उसके लिए जावा प्रेफर करोगे. तो बेसिकली लाइक जब आप कंपनी में काम करते हो तो मोस्टली कंपनीज जो होती हैं वो जावा पे ही काम करती हैं.
अगर आप किसी भी बड़ी कंपनी में इंटर्न करते हो या जॉब करते हो तो आपको जावा लैंग्वेज में ही काम करना पड़ता है। बट एक बात है कि जो लैंग्वेजेस होती है वो ज्यादा मैटर नहीं करती है एट द एंड, बिकॉज आप लैंग्वेज सीख सकते हो कभी भी। लाइक 15 दिन या 20 दिन के अंदर आप कोई भी लैंग्वेज सीख जाओगे। बेसिक्स जो होते हैं बाकी आप काम करते करते सीखोगे। तो लैंग्वेज बहुत बड़ा मैटर नहीं होता है, आप कोई भी एक पकड़ के स्टार्ट कर सकते हो। स्टार्टिंग विथ अगर आप सी प्लस प्लस करते हो तो आपको लाइक सीपी में थोड़ा सा बेनिफिट मिलेगा। अगर आप डेवलपमेंट में जाते हो देन यू हैव जावा, यू हैव पाइथन एक्सेट्रा। एंड जावास्क्रिप्ट इज स्पेसिफिकली फॉर वेब डेवलपमेंट, क्योंकि जावास्क्रिप्ट के बहुत सारे फ्रेमवर्क्स हैं जो आजकल बहुत ज्यादा पॉपुलर हैं। एग्जाम्पल रिएक्ट होता है आपका, एंगुलर हो गया, ये सारी चीजें हैं। ये सारे आपके जावास्क्रिप्ट में हैं। सो अलग अलग फील्ड के लिए अलग अलग लैंग्वेजेस हैं जो आपकी लाइक प्रेफरेबल है। Thank you, Okay, sir. sir. Thank Yeah, you very much, Lavkesh, sir. excuse me, I also want to add some point here कि आप क्या करो कि फर्स्ट ईयर में ये भी देख सकते हो कि आपको किधर इंटरेस्ट ज्यादा है। आपको एंड्रॉइड में ज्यादा इंटरेस्ट आ रहा है, आपको वेबसाइट बनाने में ज्यादा इंटरेस्ट आ रहा है, आपको AI/ML में ज्यादा इंटरेस्ट आ रहा है ना, आपको सीपी करने में ज्यादा मजा आ रहा है। तो पहले आप ये डिसाइड करो कि आपको किसमें ज्यादा इंटरेस्ट आ रहा है। उसके हिसाब से आप देखो कि कौन कौन सी लैंग्वेजेज है और कौन कौन सी टेक्नोलॉजीज है जो आपको सीखनी पड़ेंगी इसमें अपना करियर बनाने के लिए। समझ रहे हो? आप ऐसे देखोगे यस तो सर। ऐसे तो बहुत बड़ा स्पेक्ट्रम है, बहुत सारी चीजें हैं, कहीं भी आप ऐसे नहीं जा पाओगे। आप पहले अपना देख लो गोल कि आपको किधर जाना है, उसके अराउंड आप थोड़ा सा रिसर्च करके देखो कि मोबाइल डेवलपमेंट में जाना होता है तो क्या क्या करना पड़ता है। फिर देखो कि आप अभी तक जो करते आए हो उससे आपका चीजें जो है लाइन हो रही है कि नहीं हो रही है, आपको लगता है आप अच्छा परफॉर्म कर पाओगे कि नहीं। इस हिसाब से आप पहले देखो कि आपको करना क्या है, फिर आप डिसाइड करो कि आपको भाई कौन कौन सी टेक्नोलॉजीज और कौन कौन सी प्रोग्रामिंग लैंग्वेज पढ़नी पड़ेगी इस फील्ड में करियर बनाने के लिए। सर एक क्वेश्चन और था मेरा कि सर इसमें जैसे अगर हम कोई स्टार्टअप वगैरह स्टार्ट कर रहे हैं तो सर किसी इन्वेस्टर को या फिर हमारा जो आइडिया वो करेक्ट है सर उसको कैसे मतलब अप्रोच करेंगे, या अपना आइडिया सही है गलत है इसको कैसे फाइंड करेंगे? Ekant sir, please answer this question. या श्योर। तो देखो आप अपने आइडिया को अगर करना चाह रहे हो ना तो स्टार्टिंग विथ लाइक फ्यू ऐसे लोग देखो जो स्टार्टअप के एरिया में या एंटरप्रेन्योर है, और जो या फिर कुछ ऐसे लोग जो इस फील्ड में पहले से काम कर रहे हैं, है ना। कुछ ऐसे इवेंट्स भी होते हैं जहाँ पे आपको अपने आइडियाज प्रेजेंट करने होते हैं। ठीक है, वहाँ पे बड़े बड़े लोग आते हैं जो आपके आइडियाज को देखते हैं। ठीक है, कई कई यूनिवर्सिटी के प्रोफेसर्स आते हैं और गवर्नमेंट एम्प्लॉयज भी हैं जो लाइक साइंस और इनोवेशन फील्ड में वर्क करते हैं, वो भी ऐसे कई सारे इवेंट करवाते हैं। अपने गोरखपुर में भी ऐसा इवेंट होता है, अभी मेरे को नाम नहीं ध्यान आ रहा है बट मैं आपको बता दूंगा। तो आप उनमें जाके अपना आइडिया प्रेजेंट कर सकते हो। आपको वहां से उनके इनपुट्स मिलेंगे, लाइक जो भी साइंस और इनोवेशन से रिलेटेड पर्सन होते हैं वो आपको अपना इनपुट देंगे, फीडबैक देंगे कि आपका आइडिया अच्छा है या नहीं है, या सस्टेन कर पाएगा इन फ्यूचर। तो ऐसे आपको पता चलेगा कि आपका आइडिया अच्छा है या नहीं है। और फंडिंग और इन्वेस्टमेंट के रिलेटेड क्या है कि आपको पहले प्रोटोटाइप और कुछ ना कुछ अपने आइडिया पे वर्क करना पड़ेगा। देन आफ्टर यू कैन लाइक टॉक टू सम इन्वेस्टर्स कि भाई मेरे को फंड दे दो, इस तरीके से। इन्वेस्टर को फाइंड कैसे Yes, करेंगे sir. कि कहाँ पे कैसे कोई इन्वेस्टर हमें मिल सकता है, कोई वेबसाइट वगैरह हो या फिर लिंक्डइन पे कैसे अप्रोच करें? देखो लिंक्डइन पे एक्चुअली मैं ज्यादा स्टार्टअप्स में तो नहीं हूँ ना, एंटरप्रेन्योरशिप में ज्यादा हूँ, तो मेरे को ऐसे तो नहीं पता। बट मेरे को एक बात ये पता है कि कई सारे ऐसे इवेंट्स होते हैं, लाइक बेंगलोर में होते हैं और लखनऊ में बहुत सारे इवेंट्स होते हैं जहाँ पे कई सारे इन्वेस्टर्स भी आते हैं और आपके साइंस और इनोवेशन से रिलेटेड काफी लोग आते हैं वहाँ पे। तो अगर आप वहाँ पे रजिस्टर करके अपना जो भी आइडिया है वहाँ पे प्रेजेंट करते हो और किसी इन्वेस्टर को वहाँ पे पसंद आता है तो वहां से भी आपको फंडिंग मिल जाती है। ओके सर, थैंक यू सर। Thank you, sir. Sir, I would like to ask next question from G form. The questions which have been submitted by students of first year. Sir, the question is how to manage like is having good coding skills enough for getting high packages in any company? Ratnesh sir, please answer this question. Like sir,
is coding is only skill which is important for high placements, or some more skills are very important, so please mention them. हेलो या सो बेसिकली जो जो हाई पेइंग जॉब्स होती है उनके जो इंटरव्यूज होते हैं वो बहुत ज्यादा स्पेसिफिक होते हैं डेटा स्ट्रक्चर एंड एल्गोरिथम के लिए। लाइक मल्टीपल राउंड्स होते हैं गूगल के अंदर, आपके 3 से 4 राउंड्स होते हैं ओनली फोकस ऑन डेटा स्ट्रक्चर एंड एल्गोरिथम। तो सबसे इंपॉर्टेंट चीज जो है वो डेटा स्ट्रक्चर एंड एल्गोरिथम है। लाइक अगर आपको वो आता है तो 80% ऑफ द इंटरव्यू क्लियर है। बट उसके अलावा भी चीजें होती हैं जो काफी कंपनीज पूछती हैं, और लाइक एग्जांपल के लिए सिस्टम डिजाइन होता है, या फिर आपके जो डेवलपमेंट की चीजें होती हैं वो सारी चीजें। तो वो लाइक वो स्पेसिफिक होता है कंपनीज के लिए कि कुछ कंपनीज उसके राउंड कराती हैं, कुछ नहीं करवाती हैं। तो मोस्टली जो डीएसए होता है वो इम्पोर्टेंट है, एंड बस डीएसए कर लो तो आप काफी कंफर्टेबल हो गए किसी भी जॉब को क्रैक करने के लिए। So if someone knows Thank you. DSA, then he can crack the company. I want to add one more thing, रत्नेश। यार देखो, Yes, sir. गुड स्किल्स के साथ साथ हम लोग को एक अच्छी कम्युनिकेशन स्किल्स और एक अच्छी इंग्लिश स्पीकिंग भी चाहिए होती है किसी जॉब को क्रैक करने के लिए। Yes, sir. So thank you, sir. And sir, someone else wants to ask some questions. They can raise their hand. Good evening, sir. Hello, sir. First of all, raise your hand. I will call your name, then you have to unmute. Okay, Manish, you can ask your question. Good evening, respected senior sir. My name is Manish Gaur, from Computer Science and Engineering BTech first year. सर मेरा क्वेश्चन ये था कि सर प्लेसमेंट के दौरान सर क्या क्या दिक्कतें फेस करनी पड़ी थी आप लोग को? Answer, please answer his question. या श्योर। सो देखो, प्लेसमेंट से रिलेटेड अगर मैं बताऊं क्या क्या प्रॉब्लम्स हैं और क्या क्या हर्डल्स होती हैं जो आपको फेस करना पड़ सकता है। सो स्टार्टिंग में क्या होता है, आपका रिज्यूमे शॉर्टलिस्ट नहीं होता। आप अगर मैं देखो, ये दो तरफ में डिवाइड कर सकता हूँ इसको, एक तो ऑफ कैंपस एक ऑन कैंपस। अगर ऑन कैंपस तो कंपनीज ही नहीं आती इतनी अच्छी, तो बात ही खत्म हो जाती है। जो आती है अगर आप उसमें पार्टिसिपेट करते हो तो उसमें लक का बहुत बड़ा फैक्टर होता है। ऑन कैंपस में होता दोनों में ही है, बट ऑन कैंपस में भी काफी ज्यादा होता है, क्योंकि मोस्ट ऑफ द टाइम्स ऐसा कहते हैं सब सीनियर्स कि कभी कभी क्या होता है कि रैंडम सिलेक्शन भी हो जाता है, या फिर फ्लैग लग जाती है आपकी, या आपके जीडी में आप रिजेक्ट हो जाते हो। जीडी में क्या होता है, आपको बोलने का मौका नहीं मिल रहा है ना। तो ये सारी काफी सारे फैक्टर्स होते हैं ऑन कैंपस में जो कि मेजर रोल प्ले करते हैं। अगर मैं ऑफ कैंपस की बात करूं तो ऑफ कैंपस में सबसे बड़ी जो प्रॉब्लम है वो है रिज्यूमे शॉर्टलिस्टिंग की। हमको टेस्ट लिंक नहीं आती। टीयर 3 कॉलेज, अब या तो ये कह लो, या तो आपकी स्किल सेट कह लो, या तो फिर आप बोल सकते हो कि जेंडर रिलेटेड इश्यूज भी होते हैं, क्योंकि गर्ल्स के लिए थोड़ा अपॉर्चुनिटीज ज्यादा होती है एज कम्पेयर टू बॉयज। तो बहुत सारी ऐसी प्रॉब्लम्स होती है कि जहाँ पे आपके जिसकी वजह से आपका रिज्यूमे शॉर्टलिस्ट नहीं होता। सबसे बड़ी प्रॉब्लम यही है। इसके बाद क्या है कि मान लो आपका रिज्यूमे शॉर्टलिस्ट हो गया, आपको टेस्ट लिंक आ गई, ठीक है। फिर क्या है, मोस्ट ऑफ द टाइम्स जो टेस्ट लिंक होगी वो आपको डेटा स्ट्रक्चर एल्गोरिथम के क्वेश्चन ही करवा रही होगी। मतलब उसमें आपको डीएसए के 3 क्वेश्चन मिलेंगे, विद इन स्पेसिफिक टाइम आपको सॉल्व करने होंगे। तो अगर आपको डीएसए अच्छे से नहीं आता है, या फिर आप टाइम कंस्ट्रेंट में प्रॉब्लम सॉल्व करने की आपको हैबिट नहीं है, आपने कॉन्टेस्ट नहीं दी है ना, तब आप वहां पे लैग करते हो, वहां पे आप फंस जाओगे। आपका जो है ओए मतलब ऑनलाइन असेसमेंट जो भी होते हैं वो आपके नहीं निकलेंगे। तो दूसरी प्रॉब्लम ये होती है कि अगर आपको जिस कंपनी में आप अप्लाई कर रहे हो वो कंपनी क्या पूछने वाली है, अगर आपको वो नहीं आता है तो आप वहां पे फंसोगे, ठीक है। इसके बाद क्या होता है, फिर इंटरव्यू आते हैं। मान लो आपके टेस्ट लिंक्स निकल गए, आपको इंटरव्यू की कॉल आ गई। अब इंटरव्यू में क्या इश्यूज होते हैं, तो इंटरव्यू भी 2 तरीके के होते हैं। एक तो लाइक ऑन साइट होता है, एक आपका रिमोट होता है। ऑन साइट में आपको जाके देना होता है, रिमोट में आपको घर पे बैठ के अपने लैपटॉप से देना होता है। तो मेजर प्रॉब्लम इंटरव्यूज में क्या फेस करनी पड़ती है, एक तो होती है कम्युनिकेशन स्किल। आपको चीजें भाई आती है, बट आप सामने वाले को बता नहीं पा रहे हो,
है ना। आपको सारा क्वेश्चन उसने आपसे पूछा, आपको उसका आंसर पता है, आपको कोड सब मतलब पूरा लॉजिक क्लियर है, बट आप अपने आप को एक्सप्रेस नहीं कर पा रहे हो, अपने जो भी आपके थॉट्स हैं वो इंटरव्यूअर को नहीं समझा पा रहे हो, तो भी आप रिजेक्ट हो जाओगे वहां पे। तो एक प्रॉब्लम ये है कि आपकी कम्युनिकेशन स्किल इतना एटलीस्ट इतनी अच्छी होनी चाहिए कि आप अपने थॉट सामने वाले को समझा पाओ। ठीक है। फिर इसके बाद क्या है, इंटरव्यूज में थोड़ा सा लक भी जो है मेजर रोल प्ले करता है वहां पे। होता क्या है कि आपसे इंटरव्यूअर क्वेश्चन पूछता है रैंडमली, आपको हो सकता है कि एट दैट मोमेंट आपको हिट ना करे क्वेश्चन, तो आप नहीं बता पाओगे, बट आप हो सकता है कि आफ्टर द इंटरव्यू आप तुरंत उसका आंसर मतलब आपको आ जाए, आप बता ले जाओ, बट विद इन इंटरव्यू टाइम आप हो सकता है ना बता पाओ। तो थोड़ा सा लक और नर्वसनेस और आपका कॉन्फिडेंस भी मेजर रोल प्ले करता है वहां पे, कि आप इसके लिए आपको करना क्या पड़ेगा। जो इंटरव्यूज में अच्छा सा अगर आपको लाइक प्रिपेयर करना है तो उसके लिए आप मॉक इंटरव्यूज दे दो। बहुत सारी वेबसाइट है, प्रैम्प हो गया और स्केलर पे भी मॉक इंटरव्यूज पता नहीं कहाँ का, तो बहुत सारा हो गया। तो आप मॉक इंटरव्यूज ऐसे डालोगे बहुत जगह आ जाएगा। तो मॉक इंटरव्यूज आप पहले से देना स्टार्ट करो। मतलब आप अगर पहले से कुछ इंटरव्यूज दे रखे होगे तो आपको एक कॉन्फिडेंस रहेगा, कि आपको पता रहेगा कि आपको कैसे परफॉर्म करना है इंटरव्यू, कैसे बोलना है, कैसे आंसर्स करने हैं क्वेश्चंस के। ठीक है। तो बस मेजर प्रॉब्लम्स तो यही होती हैं इंटरव्यूज के बाद। तो अगर आपने अच्छा परफॉर्म कर दिया तो सिलेक्ट हो ही जाते हो। Thank you, sir. Thank you very much, sir. And Himanshu Dubey Thank you, wants sir. to ask some question. Please unmute yourself and you can ask your question. ये सब दोगलापन है। मैं Good तेरा evening, दोगलापन ना उतार लूं। good evening, respected seniors. My name is Himanshu Dubey, Information Technology Branch, BTech second year. Sir, I am doing competitive programming. I'm working on my competitive programming and also doing data structure algorithms. But sir, I contributed to open source too. But sir, as development is concerned, sir, I want to know कि हम डेवलपमेंट में किस लेवल तक जाएं कि लाइक आवर resume gets listed, and also sir, I want to know कि like when I see the resume of Ekant sir, Ujjwal sir, I get enough motivated like in this college scenario, in the college scenario in which we are studying, how they manage to develop that good project there. So sir, I'm concerned about the projects, like what tech stacks are mainly concerned for the development, and और सर क्या अच्छे प्रोजेक्ट्स हो सकते हैं कि हम एक अच्छे स्टार्टअप में एक इंटर्नशिप के लिए हम ग्रैब कर सकें। Okay. I would like to request Ujjwal sir to answer his question, please, sir. ओके। तो यार देखो, सबसे पहले बात करें अगर हम डेवलपमेंट पर्सपेक्टिव की, तो इसमें दो चीजें हो सकती है। या तो तुम सीपी में अच्छे हो तब तुम्हारी डेवलपमेंट प्रोफाइल थोड़ी कम भी रहेगी तब भी चल जाएगी, तुम्हारा रेज्यूमे शॉर्टलिस्ट हो जाएगा। और सेकंड पॉइंट ये कि अगर तुम्हारी सीपी स्किल इतनी अच्छी नहीं है, अप टू द मार्क नहीं है, तो तुम्हारी डेवलपमेंट वाली प्रोफाइल थोड़ी अच्छी होनी चाहिए, तभी तुम्हारा प्रोफाइल शॉर्टलिस्ट होगा। इनकेस अगर तुम्हारा दोनों एवरेज है तब भी शॉर्टलिस्ट होने के चांसेस ज्यादा है। आप सेकंड क्वेश्चन पे आए तो देखो, प्रोजेक्ट्स ऐसे बनाओ जो काफी लोगों को इम्पैक्ट करे। जैसे कि तुम कॉलेज के लिए कुछ बना सकते हो, जैसे कि मेरे फ्रेंड का प्रोजेक्ट है कॉलेज पे करके। उसमें बेसिकली वो ये करता है कि जो पास आउट हो जाते हैं उनके जो मतलब बुक्स वगैरह होती है वो उस पर डाल देते हैं, तो वो अगला कोई खरीद सकता है। तो ये एक प्रोजेक्ट का आइडिया जो मतलब एक ग्रुप ऑफ कम्युनिटी को इन्फ्लुएंस कर रहा है, मतलब उससे मोर देन मतलब मैनी पीपल्स उससे इम्पैक्ट हो रहे हैं। तो प्रोजेक्ट ऐसा ही होना चाहिए कि काफी पीपल उससे इम्पैक्ट हो। Thank you, sir. Thank you, sir. Someone else wants to ask some questions. We hope we have solved many of the general queries of all juniors. So we are heading to further. We are further heading to. Please let me take some more questions. If someone else wants to ask some questions, they can ask their question. So may I? Okay, unmute yourself and ask your question.
Good evening, respected senior sir. My name is Akanksha from Information Technology branch, BTech first year. Sir, I want to ask a question. This is the first year and we are fresher. Sir, should we join any online platform to learn something new? Like 4 days ago, I have received a call from Coinstant. They are giving first year 45 days of industrial training and Microsoft examination. There are various plans over there. Second year 45 days of major projects. So should we join this online platform to learn any of the programs like artificial intelligence, machine learning, data science, web development? Is this the right time to join this? I would like to request Ratnesh sir to answer this question. ओके सो बेसिकली आपको जैसे कोई टेक्नोलॉजी सीखनी होती है लाइक एआई एमएल ये सारी चीजें तो काफी कोर्सेज अवेलेबल है ऑनलाइन लाइक काफी बहुत सारे प्लेटफॉर्म्स आजकल आ गए हैं जो कोर्सेज ऑफर करते हैं एंड तो बेसिकली आपका जो मेजर डिफरेंस आता है वो ये आता है कि अगर आप सेल्फ प्रिपेयर कर रहे हो तो उसके लिए भी बहुत रिसोर्सेज अवेलेबल है लाइक बहुत सारे आपको ब्लॉग्स मिल जाएंगे अलग अलग वेबसाइट पे लाइक मीडियम एक्सेट्रा आपको बहुत सारे यूट्यूबर्स के लाइक वीडियोस मिल जाएंगे बट ये सारी मेहनत आपको खुद करनी पड़ेगी आपको खुद से सर्च करना पड़ेगा आपको खुद से सोचना पड़ेगा कि कितना पढ़ना है क्योंकि लिमिट नहीं होती किसी भी चीज की कि आप बहुत ज्यादा भी पढ़ सकते हो उसको तो आप एक ही टॉपिक को बहुत ज्यादा सीख जाओगे एंड कोई टॉपिक मिस हो जाएगा तो आपका टाइमिंग भी बहुत ज्यादा लगेगा बहुत सारे लाइक फालतू टाइम भी जाएगा आपको रिसर्च करने में वगैरह वगैरह और जब आप कोई कोर्स ज्वाइन करते हो तो ये सारी चीजें प्री डिफाइंड होती हैं उनका एक सेट ऑफ प्लान होता है कि इतना पढ़ना है इतने दिन तक पढ़ना है आपको वो रिसोर्सेज देंगे आपसे वो क्वेश्चंस करवाएंगे तो ये सारे बेनिफिट्स होंगे तो आपको चॉइस करना है कि आप अगर वो मेहनत खुद से कर सकते हो तो आप डिस्ट्रैक्ट नहीं होते हो आप कैसे मेहनत कर सकते हो तो ठीक है देन यू आर गुड टू गो सॉरी टू इंटरप्ट यू सर मुझे ये पूछना था कि अब ये सही टाइम है ज्वाइन करने के लिए अभी हम फ्रेशर हैं अभी एक ही मंथ हुआ है कॉलेज ज्वाइन करे क्या ये सही टाइम है या फिर हमें फर्स्ट सेमेस्टर के बाद ज्वाइन करना चाहिए या सेकेंड ईयर में या अभी ज्वाइन कर लें Akanksha, which type of courses you are asking? Please mention it. So, I have received a call 4 days ago from Coincident official partner with Microsoft. या फिर लाइक डेटा स्ट्रक्चर है क्या था वो Yes. Sir, like बहुत सारे कोर्सेज तो बहुत सारे प्रोग्राम्स है जैसे मशीन लर्निंग एंड विद पाइथन एंड माइक्रोसॉफ्ट डाटा साइंस विद पाइथन साइबर सिक्योरिटी एआई रोबोटिक्स वेब डिजाइनिंग बहुत सारे प्रोग्राम्स थे उन्होंने कोर्सेज ऑफर करे थे जैसे फर्स्ट ईयर में सर वो 45 डेज का मतलब इंडस्ट्रियल ट्रेनिंग देंगे और एक मेजर माइक्रोसॉफ्ट एग्जामिनेशन लेंगे सेकेंड ईयर में 45 डेज का मेजर एंड माइनर प्रोजेक्ट्स रहेंगे थर्ड ईयर में 45 डेज की पेड इंटर्नशिप रहेगी एंड फोर्थ ईयर में प्री प्लेसमेंट ऑफर रहेंगे ऐसे उनके ऑफर्स थे तो सर उन्होंने बहुत सारे प्रोग्राम्स मतलब रिज्यूमे स्ट्रॉन्ग करने के लिए वो बताएंगे सारी सारी चीजें उन्होंने अपने ऊपर ली कि ऑनलाइन कोर्सेज में सारी चीजें बताएंगे तो क्या सर हमें ये ऑनलाइन कोर्सेज अभी ज्वाइन कर लेनी चाहिए अभी हमें कुछ पता नहीं उसके बारे में ओके सो इसके लिए लाइक ये टोटली डिपेंड करता है लाइक पर्सन टू पर्सन बट आई विल प्रेफर कि आप मत ज्वाइन करो ऐसे प्रोग्राम्स अभी फिलहाल अभी आप जो है लाइक अभी आपको नहीं पता है कि आपका इंटरेस्ट किस में है अभी आप स्टार्टिंग में हो बिल्कुल सो अभी आप केवल एक्सप्लोर करो डिफरेंट चीजें अभी लैंग्वेज सीखो एंड हर डोमेन के लिए पहले फ्री रिसोर्सेज देखो कि आपका इंटरेस्ट किस में है बेसिकली फाइंड करो लाइक कोई यूट्यूब स्टार्टिंग करके आप देख लो कि AI/ML के क्या बेसिक कॉन्सेप्ट है कि आपको आगे काम करना है उसके अंदर कि नहीं एंड देन जब आप स्पेसिफिक हो जाओ देन आप कोई कोर्स को ज्वाइन कर सकते हो कोई उसमें वो नहीं है लाइक वो अच्छा सिखाते हैं लेकिन डिपेंड करता है कि आप खुद से सीख सकते हो वो कि नहीं अगर खुद से कर सकते हो तो गुड आपको ज्वाइन करने की जरूरत नहीं है लेकिन अगर आप ज्वाइन भी करते हो तो कोई बहुत लॉस नहीं है वहाँ पे वो आपको कम डेज के अंदर अच्छी ट्रेनिंग दे देंगे दैट्स इट तो सर हमें इसको ज्वाइन करने का एग्जैक्ट टाइम मतलब अप्रॉक्स कब तक ज्वाइन करें फर्स्ट ईयर में ज्वाइन कर लें या सेकंड ईयर में या फर्स्ट सेमेस्टर में आफ्टर फर्स्ट ईयर आप ज्वाइन देख सकते हो ज्वाइन करने का जब आप क्लियर हो जाओ क्योंकि फर्स्ट ईयर में आप सारी चीजें एक्सप्लोर कर लोगे फर्स्ट सेमेस्टर में आप लैंग्वेज सीख जाओ सेकंड सेमेस्टर में आप ट्राई कर लो सारी चीजें ओके सर थैंक यू सो मच Thank you, sir. Thank you very much, sir. Okay, ask your question. Good evening, respected seniors. Myself, Prince from Information Technology of BTech first year.
सर मेरा क्वेश्चन ये है कि साइबर सिक्योरिटी की अगर फील्ड में जाना हो तो कहाँ से कैसे स्टार्ट करें? रोड मैप साइबर सिक्योरिटी की फील्ड में। I would like to request Ekant sir to answer his question. या श्योर। सो अगर आप साइबर सिक्योरिटी की फील्ड में जाना चाहते हो ना, तो फर्स्ट थिंग है कि आपको नेटवर्किंग बहुत अच्छे से आनी चाहिए। उससे पहले आपको एक लैंग्वेज बहुत अच्छे से आनी चाहिए, किसी में भी आप कोड करते हो, क्योंकि अगर आप साइबर सिक्योरिटी में भी जा रहे हो तो वहाँ पे भी ऐसा नहीं है कि प्रोग्रामिंग यूज नहीं होती। प्रोग्रामिंग के जो कॉन्सेप्ट्स हैं वो वहाँ भी यूज होते हैं। तो आपको प्रोग्रामिंग तो सीखनी है, जो कि बेसिक है। उसके बाद आपको नेटवर्किंग बहुत अच्छे से आनी चाहिए, क्योंकि साइबर सिक्योरिटी में आप 70 to 80% देखोगे तो वहाँ पे आपका नेटवर्किंग का ही यूज है। ठीक है, तो आपको नेटवर्किंग के सारे मतलब कंसेप्ट जो है वो अच्छे से क्लियर होने चाहिए। उसके बाद आप देख सकते हो कि साइबर सिक्योरिटी में और क्या क्या चीजें हैं। ठीक है, लाइक आपको एथिकल हैकर बनना है, या फिर आपको साइबर सिक्योरिटी के जो स्पेसिफिक डोमेन्स, कई सारे उसमें अंदर डोमेन्स आते हैं, तो आप किस में जाना चाहते हो वो देख सकते हो। उसके अकॉर्डिंग फिर क्या क्या पढ़ना पड़ता है उसे प्रिपेयर कर सकते हो। बट इनिशियल अगर मैं बोलूँ तो आपको प्रोग्रामिंग लैंग्वेज अच्छे से करनी पड़ेगी, और नेटवर्किंग अच्छे से आनी चाहिए। कंप्यूटर नेटवर्किंग का नेटवर्किंग मतलब कंप्यूटर नेटवर्किंग। ठीक है, तो ये दो चीजें आपको बहुत अच्छे से आनी चाहिए। ठीक है, थैंक यू सर। Thank you, sir. So due to time foundations, we cannot take more questions. Can I ask? So, Tanya, please continue. I'm sorry, we cannot take further questions. So we'd like to express a word of gratitude towards all our speakers who spared their valuable time for out of their busy schedules to guide us. We heartily thank you all for all of your advices that you all have bestowed on us. Thank you, Thank you, seniors. Thank you very seniors, much. for joining us today. Thank you, seniors. Now let's move to the next part. So here we are going to introduce to our website, introduce you people with our website. This website can be very beneficial for you. So you can see it on your screen. And this website of link of this website will be provided to you, and you can access it. So we have many sections inside it, like home section, and we have alumni section in which we tell about our alumni who are working at good positions. And we have our team page in which you can know whether how many people are there in our team, and you can contact them. And there is one more page, verification page, which can help you to verify your certificates, which will be provided by CodeSafe, the preliminary chapter. And at last, you can we have a contact us page, which can help you to contact us for any query and anything. So now let's introduce you people to our faculty advisor here. So our faculty advisor, Assistant Professor Mr. Rohit Kumar Tiwari, sir, CSE department. We are blessed to have his immense support. His guidance have always directed to us path of wisdom. So thanking to them. Thank you very much, sir. Next, we would like to introduce our president of our chapter, respected senior Yash Tiwari, sir, Computer Science and Engineering branch, BTech third year. And our vice president, respected senior Amit Bharadwaj, sir, Information Technology branch, BTech third year. Now I request Yash sir to share a few words of knowledge to our fellow attendees. Hello everyone. Am I audible? Yes, sir, you're audible.
Okay, so I just hope that everyone enjoyed the session and learned a lot, learned the best points from here. कैसा लगा ये session? First year? Very informative. Hello? So Sir, too good, very very informative, and we gained a lot of knowledge. अगर ऐसा So हुआ very हो कि informative. किसी के डाउट्स सॉल्व नहीं हो सके क्योंकि बहुत सारे लोग थे. ओके ओके Yes, sir. ओके लेट मी अच्छा स्पीक. लगा. सो आई वाज सेइंग दैट कि बहुत से ऐसे लोग होंगे जिनके डाउट सॉल्व नहीं हो पाए क्योंकि 250 से ज्यादा लोग ज्वाइन थे और इतने ही ज्यादा फॉर्म रिस्पॉन्सेज आए थे, तो ऑब्वियस सी बात है कि कई लोग के डाउट सॉल्व नहीं हो पाए होंगे. हमने कोशिश की कि जो सबसे जेनरिक डाउट्स हो वो जरूर सॉल्व हो जाएं, बट स्टिल जिनके डाउट्स नहीं सॉल्व हो पाए हैं वो हमारी वेबसाइट पे जा सकते हैं. उस पर कॉन्टेक्ट अस का पेज है. अगर वो जेन्युइन डाउट हो और अभी तक सॉल्व नहीं हुए हों, उन्हें सच में कोई हेल्प चाहिए, तो कॉन्टेक्ट अस पेज पे लिख सकते हैं अपने डाउट्स. वो मेल आएगा हमें और हम उसके रिप्लाई देने की कोशिश करेंगे. अदरवाइज आप चाहें तो और टीम जो वेबसाइट अभी दिखाई गई है उसके और टीम पेज पे भी जा सकते हैं और वहाँ पे हर टीम मेंबर्स के लिंक्डइन प्रोफाइल्स और इंस्टा प्रोफाइल ऐसी चीजें मेंशन की गई हैं, वहाँ भी कनेक्ट कर सकते हैं और डायरेक्टली किसी सीनियर से जिनसे आपको गाइडेंस चाहिए किसी मामले में वो भी डिस्कस कर सकते हैं और पूछ सकते हैं. इज इट क्लियर टू एवरीवन? Yes, sir. Yes, okay. So, देखो, I think most of the points has been already covered by all the seniors, but still, if I have to summarize this session or I have to add some extra points, then I would just say, देखो यार, we all know that college is a time for learning. It's a time for expanding your horizons. It's a time to learn and learn how to overcome challenges on your own. But बहुत सारी चीजें होती हैं, जैसे तुम्हें लाइफ में कंसिस्टेंसी भी चाहिए होगी. बहुत बार ऐसा होगा कि तुम हार जाओगे, तुम गिर जाओगे, तुम्हें उठना भी पड़ेगा. यू हैव टू लर्न, यू हैव टू मेक अ हैबिट ऑफ राइजिंग अप आफ्टर एवरी फॉल, एंड यू हैव टू लर्न हाउ टू हैंडल प्रेशर इफ यू वांट टू परफॉर्म वेरी वेल in kind of coding interviews or in OA exams that usually happen at the initial stages of interview. Then you have to learn how to handle your pressure. You have to learn how to rise up after every fall. You have to learn the consistency, and these all things, all threads that I'm telling you get joined together at a single knot, and that's a competitive programming. अभी सर लोगों ने इतना बताया कि कॉम्पिटिटिव प्रोग्रामिंग का इंपॉर्टेंट कितना है. जैसे वेब डी देखो फर्स्ट ईयर में क्या है, जैसे सबने कहा कि एक्सप्लोर करो, उसका पता चलेगा कि एक बैलेंस चाहिए होता है. इंजीनियरिंग इज ऑल अबाउट बैलेंस. यू हैव टू लर्न हाउ टू मैनेज ऑल दोस थिंग्स. वेब डी भी इंपॉर्टेंट है, सीपी भी इंपॉर्टेंट है, डीसी भी करना पड़ेगा. हर चीज इंपॉर्टेंट है, हर चीज में एक बैलेंस रखना और उसके बाद ऐसे ही प्रोसीड करना तो चलता रहेगा. So if you start coding and follow the path of competitive programming, you will automatically become consistent, logical, and mentally strong. So you will learn how to rise after fall. हम जैसे for example, we provide you with all the resources. Codeship Triple MUT chapter ने आज जो session कराया है, we will keep organizing such sessions, and we also organize several classes, and we organize contests. We provide you all resources to test your skills in between and to make you ready for your dream job. And in future, the best part is that you can also join us and be a part of our super active team to nourish your soft skills. जैसे अभी सर ने बताया ना कि सॉफ्ट स्किल्स इंपॉर्टेंट होती हैं, कोडिंग में काम आती, इंटरव्यूज में काम आती हैं आपके. वहां से डिसाइड होता है कि आप एक्सप्रेस कर पा रहे हैं कि नहीं. तो वो सब चीजें आप सीखते हैं ऐसी चैप्टर्स का, ऐसी सोसाइटीज का पार्ट बन के, जो आपके कोडिंग नॉलेज को भी नरिश करें, साथ ही साथ ऐसी सॉफ्ट स्किल्स को भी नरिश करें. ओके, so I just hope and I really wish कि someday some of you get again invited here to guide their juniors about their journey. आज तुम लोगों ने सुना अपने सीनियर्स को कि कैसे उन्होंने अपनी जर्नी स्टार्ट की, कैसे शुरू हुआ, आज वहां पर हैं. अब इन फ्यूचर ऐसा होना चाहिए कि तुम में से कोई आए यहाँ पर इस चैप्टर का पार्ट बन के और इन फ्यूचर वो इन्वाइट हो यहाँ पे अपने जूनियर्स को उसी तरीके से गाइड करे. दैट वाज द मेन मोटिव ऑफ दिस सेशन एंड आई होप यू लर्न अ लॉट फ्रॉम दिस. And finally, I wish you happy coding and even happier journey ahead. And thank you very much for your precious time. Thank you so much. Anant, over to you. Thank now. you, sir. Thank you very much, sir. Thank you, sir. Thank you, sir. So with this, we are heading towards end of this session. We would like to express our word of gratitude towards all of our speakers who spared their valuable time out of their busy schedules to guide us. We heartily thank you for all the advices that you all have to bestowed on us. Also, we are grateful to everyone who joined this webinar. Thank you very much. Thank you, sir. Thank you, sir. Thank you, seniors. Thank you, sir. Thank you, sir.
Thank you, sir. Thank you so much. Very much. Thank you, sir. Thank you, sir. Was an Thank you. amazing session.